Can we share this screen after start of this session? Yeah, I just checking. Okay, I have closed it. Yeah. no problem. Because the screen is different now, we have to see the participant, how many people are Yes, joining, yes, yes. and No issues. after introduction and all, Yes. now you can see people are joining. Hmm. Uh, okay, we have to admit it. Now it's 30. So you can also you have the rights to make admit all people. If you see somehow people are joining, you can admit them. Yes, I have done it. दुनिया में ना कि एक ही लोग समझदार नहीं है और एक ही लोग पत्थर फेंकना Hello मतलब बोलते everyone. हैं I ना कंकड़ request. में Yes, गहराई नापने के I लिए। request everyone to mute themselves. Now Nupur, you can see the option is just below to that. You can mute all. Okay, whenever there is a chaos, you can also you have the option to mute. So we can wait Yeah, for can you one hear and two me? minutes. I cannot Yes. see any this thing to mute everyone. Okay, no problem. We are handling it. Yeah. Fine, fine. You are doing the recording thing, right? Yes. Okay, sure. Just send me the link. I think we will start in another 2 to 3 minutes. Mhm. So you're also recording, I guess. You can Yes, see you. someone from my fam. I am not recording, but I think someone from my family maybe has pressed on recording thing. I am not recording. No, no, that's good. You can have like that Okay. recording. No problem. So you can send me the link if this is going live on Facebook Yeah, now. once we go now, we go live. We'll Actually, it send was you the link. showing on above that it's live on Facebook. So I thought, No, no, it is not showing. It is just recording. okay. It will be shared by Sachin itself. Hmm. Can you hear our voices? Yes, I can hear you. Yeah. So I think we have a few participants. I welcome everyone today. And thank you for joining everyone. We'll be just starting in couple of minutes. रेनू मैम है क्या अभी कॉल पे? फ्रॉम एसएसएमआई रेनू मैम है क्या? ओके.
Hello. Hello. Yes, I request everyone to mute yourselves. We'll be starting in another 5 minutes. Thank you. You can just mute yourself. We will starting in a few minutes. Like give me 2 minutes. Like people are joining, so we don't ask. Like we don't think like they will miss it from start. So Nupur, we can start now. Because people will join in the middle also. Now it's already 5 minutes, so we should not waste more time and we should start. Okay. So I welcome and good morning everyone. I hope all are good in this difficult time of COVID. And my name is Shahnawaz, and I'm from I Volunteer, and I'm working here from last 2.5 years. I Volunteer mission is to bring volunteer and organization together to share time, skill, passion to promote India's social development. I volunteer deliver impact 12 social development areas. It's beginning from 2001. I volunteer now engage 17,000 volunteers every year through a range of programs. So today we have also SSMI, Swami Sivananda Memorial Institute, and their children in present in this session. And we have Nupur Dingra, the facilitator and trainer of this session, who is a lifestyle management consultant and a complete health coach who truly believe in complete health in is not the absence of any disease. It's the state of well-being of social, mental, and physical aspect of health. So now it's up to Nupur. Now we can start the session. Thank you so much, sir. And hello, everyone. My name is Nupur. I'm a lifestyle management consultant and a complete health coach. I welcome you all and thanks a lot for joining on this holiday and taking time out. And yes, today it's going to be a wonderful session. We are going to learn how to deal with all the aspects of health and how we are going to deal it in this pandemic which is going on. So yes, let's start. Let me just share my screen. So can you see the screen, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, all right. So yes, we are going to start now. It's unlock your way towards healthy living during this pandemic. We all know that a lot of things have already got unlocked, right? Since March, we are fighting and we are struggling with this pandemic. और हम आज जानेंगे कि हम अपने हेल्दी लाइफ को हेल्दी लिविंग को भी अनलॉक करना कितना जरूरी है. So once again, I welcome all the teachers, the students, everyone who have joined here with me. So yes, um, we have the power to choose, right? What is life? If I ask you all, like, what is life? Life is all about choices. You must have heard this quote which says the life is all about it starts from birth until death. That's it. But what's between, in between B and D? That is C, the choice. We have the power to choose. We can choose what we want, right? आई थिंक यहाँ हमारे साथ बहुत सारी स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर्स भी ज्वाइंड हैं, पेरेंट्स भी एंड टीनेजर्स भी हमारे साथ हैं. Yes, just a minute. So I think हमारे पास ही चॉइस होती है. अगर हम इस पैंडेमिक से भी हम देखें, हमने कितना कुछ सीखने को मिला है और हमारे पास ये चॉइस है कि हम हैप्पीनेस को चूज कर सकते हैं, अपने डिसीजंस को चूज कर सकते हैं. और जैसे कि हम बोलते हैं, वी हैव टू चूज हैप्पीनेस, वी डोंट हैव टू सीक इट.
हमारे पास पावर है चूज करने की। मैं आज सबसे यहाँ पूछती हूँ, एंड वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, इफ यू ऑल हैव एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस, यू कैन जस्ट ड्रॉप देम इन द चैट बॉक्स। आप अपनी क्वेरीज को, क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड इन द एंड ऑफ द सेशन we'll be answering all the questions. So yes, thank you so much. And I was talking about the choice. चॉइस हमारे पास है। मैं आज स्टूडेंट से पूछती हूँ, टीचर से पूछती हूँ, पेरेंट्स से पूछती हूँ कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में टिल नाउ अपने आप खुद क्या चूज किया है, राइट? व्हेन वी आर बोर्न, हमारा नेम डिसाइडेड होता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। यू मस्ट बी एग्रीइंग, राइट? हमारा स्कूल, अभी तो आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा अवेयर है, बट आवर स्कूल्स, they were decided by our parents. Okay, we have to go to this school, right? हमारा, हमको जो चीज आगे करनी है, then we go to college, we choose the course. Okay, our parents, our teachers, they guide us. Okay, you do this, this is good for you. You enroll in that course. And some point of the time later in your life, you know, people nowadays, they would say they have chosen their life partner, they choose their life ahead. But आज मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपने लिए क्या चूज किया है, विच यू लव फॉर योर सेल्फ? हैव यू चोजन समथिंग एंड यू आर डूइंग इट, राइट? आपने अपने लिए क्या चूज किया है? बिकॉज यू हैव द पावर टू चूज, एंड यू हैव टू चूज व्हाट यू लव, बिकॉज what habits you choose, what passion you choose, ultimately it becomes your profession, right? If you pursue it, so yes, we have the power to choose. हमें ही उस चीज को choose करना है, right? And I also suggest all the parents and the teachers to understand their children's needs and their choices. Just ask them, just understand उनकी क्या needs हैं, उनकी क्या choices हैं, and yes, of course, you can guide on them, but उनकी needs को जरूर understand करिए, और जो उनकी choices हैं, उन पे उनको आगे life में चलने दीजिए, because वही, जब उनको जो चीज अच्छी लगती है, अगर वो चूज करते हैं, then they are definitely going to have great life, because they will be following their passions. So you choose the things, right? Choose what you love. So next, if I ask you, we are talking here, we all have gathered here to know कि हम कैसे एक अच्छी लाइफ को, you know, लिविंग, अच्छी हेल्दी लाइफ हम कैसे जी सकते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सी हाउ इंटरैक्टिव माय ऑडियंस इज। आई वांट यू टू type, everyone, I want you to type in the chat box complete health. If you want to write CH, just type CH in the chat box. I want to see how active you are. I'm sure you all have had your breakfast and your tea. So let me see how active you are. Just type CH in the chat box, complete health. Shah sir, can we see the chat box? Hello, sir, are you there? Yes, Nupur, we can hear you. Okay. Thank you so much for acknowledging. Shah sir, just check the chats. Very good. Okay, Renu ji, Vandana ji, they have typed in. Thank you for being interactive, and thank you for showing your activeness. So yes, CH, that is complete health. You know, sometimes बहुत से लोग आके मुझसे पूछते हैं, जो मेरे clients हैं, जिनको भी मैं health के बारे में suggest करती हूँ, चीजें बताती हूँ, they always say कि हमको बस weight loss करना है, that is health. Can everyone please mute yourself? Okay, so they always say कि हमें weight loss करना है because हमें अच्छी health चाहिए. तो मैं आज आप सबसे पूछती हूँ, क्या सिर्फ एक weight loss ही factor होता है एक अच्छी health का? Because उनको लगता है कि अगर हमारा ideal body weight हो जाएगा, हमारी अच्छी health हो जाएगी. तो आज मैं सबको बताना चाहती हूँ कि be more aware that what complete health is. WHO, that is World Health Organization, ने भी हमारा एक definition निकाला हुआ है complete health का, which is, you can see on the screen, that is, it is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of any disease. अगर आप ये कहते हैं कि मुझे थायराइड नहीं है, मुझे बीपी नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे कोई डिजीज नहीं है, and I'm healthy, I'm fit and fine, right? So is it complete health? Do you think so? या कोई आके कहता है कि मुझे बस अपना एक आइडियल वेट हो जाए,
and then मुझे complete health मिल जाएगी, I'll be satisfied. But once you go and ask them their stress levels, उनको उनकी sleep cycle के बारे में पूछिए, उनका daily routine पूछिए, then you will come to know how healthy they are. And there comes the mental health, the social health, the kind of environment they have around them. Are they surrounded by the positive people? Do they have their friends or mentor or anyone, with which, through which they can share their things in life? Yes, so that is a complete health. Socially, you have to be healthy. Mentally, you have to be healthy, and of course, physically also, you have to be healthy. Your nutrition, your physical exercise, that's on the body level we talk, right? But what about mental health? People are on their ideal body weight. उनका आइडियल बॉडी वेट भी है, लोगों का उनको कोई डिजीज भी नहीं है, बट स्टिल दे आर स्ट्रेस्ड. So do you say that they are in the complete state of health? So that's what I'm trying to tell you. You can see on the screen as well that it comprises of many aspects. If you talk about a wellness, right? If you talk about the wellness, it comprises of some 6, 7 aspects of a complete health, which is environmental. As I told you, आपका environment कैसा है? Are you surrounded by positivity? How is your social life? आप socially कितना लोगों से connect कर पाते हैं, उनसे communicate कर पाते हैं? How is your emotional health? क्या आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर पाते हैं? कितना जल्दी आप अपने टेम्परामेंट को हैंडल करते हैं? कितनी जल्दी आप अपने एंगर को मैनेज कर पाते हैं? सो दैट इज इमोशनल स्टेबिलिटी, राइट? देन फाइनेंशियली, दीज ऑल एस्पेक्ट्स, इनको और भी एक्सपैंड कर दिया था WHO ने, बिकॉज ये सारे एस्पेक्ट्स भी आपके एक हेल्थ को डिफाइन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट? बिकॉज आपका जो फाइनेंशियल थिंग या ऑक्यूपेशनल थिंग या इंटेलेक्चुअल थिंग, right? Intellectual means, right, how, what power you have to be creative. कितना आप अपनी creativity लगा सकते हैं decisions लेने में, right? So these all are the aspects. Spiritual health, how do you connect to that divine, the oneness जिसने हम सबको ये दिया है? Do you pay gratitude? Are you in meditation, right? So all these aspects comprise of a complete health. तो आज मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ एक आइडियल वेट या एक वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वही एक हेल्थ है, तो प्लीज ब्रेक योर मिथ्स. ये सारे एस्पेक्ट्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे कंप्लीट हेल्थ को डिफाइन करते हैं, जिसमें कि फिजिकल आता है, सोशली, मेंटली, योर स्ट्रेस लेवल्स, हाउ यू टॉक टू पीपल, right? Financially, are you able to manage your finances? How are your relationships, right? So if they are having an effect on your health, that means they are a very important aspect of a complete health, right? So एक ideal weight की तरफ मत जाइए. आप एक lean person से जाके कभी पूछिए कि उनका stress levels कैसा है, उनकी sleep levels कैसी हैं, उनको sleep issues तो नहीं होते, और आपको सब पता लग जाएगा वहीं का वहीं कि एक complete health हम किसे कहते हैं. So yes, are you there with me? Are we on the same page? Please type yes. Are we good to go forward? Please type yes, everyone, in the chat box. Chat box के लिए. Okay, so ऊपर थोड़ा गाइड कर दो, चैट बॉक्स कौन सा? हाँ. there is a chat box जहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे नीचे आपको Q&A या एक चैट का ऑप्शन दिखेगा. You can type there yes. I can see from Vinita, Aanchal, Ravikant, Shivani, Lavanya. Thanks everyone for joining. Saurabh Kumar, thank you so much. So, all right. So now we talk about, you can see the quote on the screen that says, universe, please mute yourselves, everyone. Thank you so much. The universe has shaken us to awaken us, right? इस यूनिवर्स ने जो हमें एक हिलाया है, कहते हैं झटका दिया है अभी, since we have come across this pandemic, and सबको हिला के रख दिया. That's called, universe has shaken us. So my answer, my question to you is, if not now, then when, right? अभी भी जब मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, अभी सोचते हैं, अभी हम अपनी हेल्थ के बारे में ठीक है सोचते हैं. So is there
still a scope that you are thinking कि अभी और भी कुछ होगा जब हम सोचेंगे अपनी हेल्थ की तरफ, अपने अच्छे कंप्लीट हेल्थ की तरफ, राइट? बिकॉज इस पैंडेमिक ने हमें इतना कुछ सिखा दिया है, जितनी इम्यूनिटी की, जितनी न्यूट्रिशन की, जितनी हेल्थ की बात आज के टाइम पे होती है, जितनी हमारी जनरेशन इस चीज को देख रही है कि लोग किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन, अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो गए हैं और अवेयर हो गए हैं, राइट? ये चीजें पहले भी थी, बट इस पैंडेमिक ने हमें सिखाया है कि उनकी वैल्यू है, राइट? हमें इन चीजों की वैल्यू सिखाई है इस पैंडेमिक ने। सो माय क्वेश्चन इज, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अगर अभी भी नहीं हम करते, देन देयर इज नो टाइम फर्दर व्हिच इज गोइंग टू कम टू यू एंड यू नो रिमाइंड यू अगेन कि आपको आपकी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। कॉन्शियस इन द सेंस यू हैव टू बी अवेयर कि मेरे लिए क्या अच्छा है इन यू नो इन द बॉडी लेवल पे, हमारे मेंटल लेवल पे, हमारे फिजिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे हमें अपने आप को कनेक्ट करना है। एंड so yes, this is the high time, right? There's no because what we say is now is what you have. You have to take action now, right? All right. Next we come to the learnings from this pandemic. इस पैंडेमिक ने हमें क्या सिखाया है? एक नेचर की वैल्यू और एक न्यूट्रिशन की वैल्यू। पहले तो वैल्यू करना सिखाया है, आई मस्ट से कि वैल्यू करना सिखाया है चीजों को, राइट? डिसिप्लिन, जो हम बिल्कुल चीजों को, हमको पता था इम्यूनिटी हमारे लिए कितनी जरूरी है, सबको पता है हेल्थ जरूरी है, सबको पता है अच्छा खाना खाना जरूरी है, सबको पता है वर्कआउट करना जरूरी है, बट क्या कभी हमने उस पे एफर्ट्स किए उतने जितने हम आज की डेट में कर रहे हैं, राइट? जितना हम नेचर को वैल्यू कर रहे हैं। नेचर ने हमें सिखा दिया है कि एक छोटी सी चीज ने हमें कैसे केज में बंद कर दिया है, राइट? सो दैट्स द पावर ऑफ अ नेचर। जब नेचर आती है, सो नथिंग कैन बी कंट्रोल्ड, राइट? सो नेचर की ऐसी पावर है। एंड यस, न्यूट्रिशन, आज सभी बस न्यूट्रिशन के बारे में, अच्छा खाना, अपनी इम्यूनिटी, और दिन में 3 टाइम काढ़ा पीना, राइट? एम आई राइट? आर यू ऑल विद मी? सो यस, हम न्यूट्रिशन की पावर को भी आज जान गए हैं, और नेचर की पावर को भी हम जान गए हैं कि नेचर जब कुछ हमें सिखाने आता है, तो यही पैंडेमिक भी हमें एक टीचर की तरह आया है, कुछ सिखा रहा है। एंड आई विश कि हम इस चीज को सीख लें और टाइम पे सीख लें, राइट? सो यस, as I talked about nature, nature is our greatest spiritual teacher, right? Because it has literally the power to heal. And by slowing down, you know, when you go out in the nature, when you notice all those 5 senses, a calm environment may, you smell the sounds of the nature, you become present, you become aware of that particular moment. आपको बहुत बारी आपने ऐसा नोटिस करा होगा, अभी तो नहीं इनफैक्ट, बट बिफोर द लॉकडाउन, बिफोर दिस पैंडेमिक, जब भी आप नेचर में जाते थे, आप जब उस नेचर में अपना टाइम स्पेंड करते थे, आप ट्रीज को देखते थे, फ्लावर्स को देखते थे, भले ही लोगों को देखते थे, यू सिट ऑन अ बेंच, उस टाइम पे आप थोड़ी देर के लिए सही, बट यू वर इन अ स्टेट ऑफ, आप एक कामनेस की स्टेट में आ जाते हो, राइट? बिकॉज आपको एक नेचर एक बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं, अंदर से आपको डिटॉक्सिफाई कर देता है, बिकॉज नेचर में ऐसी पावर है, राइट? सो वी ऑल नो कि हमारा नेचर जो है 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, राइट? विच इज आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि एंड वायु। दीज आर 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और यही 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी है। तभी आयुर्वेदा में कहते हैं अगर इन 5 एलिमेंट्स की डिस्टर्बेंस हो जाए, तो बॉडी में जो है रोग, दैट इज डिजीज, पैदा होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इन्हीं 5 एलिमेंट्स की डिस्टर्बेंसेस से वो 3 दोष आते हैं, जो कि आयुर्वेदा में, यू मस्ट ऑल बी अवेयर, वात, पित्त एंड कफ दोष। तो इन्हीं एलिमेंट से नेचर बना है, और इन्हीं एलिमेंट से हमारी बॉडी भी बनी है, राइट? सो ये जो नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं, ये हमें क्या सिखाते हैं? आकाश, विच इज स्काई, स्काई इज द लिमिट, राइट? अपने को लिमिट करके मत रखिए, जस्ट बी लिमिटलेस। अपनी फियर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए एंड देखिए उस स्काई की तरफ, एंड देन यू विल रियलाइज कि यस, माई ड्रीम्स कैन बी फुलफिल्ड। अपनी ड्रीम्स को बहुत बड़ा करिए, राइट? स्काई से हमें ये सीखने को मिलता है।
राइट, कि बिल्कुल हमें अपने आप को लिमिट करके नहीं रखना, अपनी ड्रीम्स को एक्सपैंड करिए, बिकॉज once again I'm saying you have the power to choose, you have the power to dream and live those dreams and fulfill those dreams. So yes, sky is the limit, right? नेक्स्ट, पृथ्वी से, जो एक अर्थ है, एक सॉलिड मैटर है, ये हमें सिखाता है कैसे चीजों को बाइंड करके रखना है, एक स्टेड फास्टनेस की स्टेट हमें सिखाता है। उसी तरीके से जल है, विच इज वाटर, इट्स फ्री फ्लोइंग। वाटर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि किसी भी एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट हो जाता है। यू पुट इट इन अ बॉटल, बॉटल की शेप ले लेगा। यू पुट इट इन अ सर्कल, राउंड कंटेनर, वो उसकी शेप ले लेगा। तो वाटर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एडजस्ट इन एवरी सिचुएशन। जैसे कि आज है, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है हम वो करेंगे, हमें उसी, क्या कहते हैं, उसी बहाव में बहना है, राइट, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज इट। आप वाटर को देखते हैं, वाटर भी उसी की शेप ले लेता है, वाटर एडजस्ट हो जाता है। तो वाटर से हमें ये सीखने को मिलता है दैट वी हैव टू एडजस्ट विद द सिचुएशन, राइट। नेक्स्ट इज अग्नि, फायर, राइट। आपकी इनर फायर, आपकी इनर जेस्ट कितनी है, अपनी ड्रीम्स को, जब तक आपके अंदर की इनर फायर, इनर पैशन जिंदा है, आप अपनी ड्रीम्स को तभी फुलफिल कर सकते हैं, अपनी लाइफ को तभी एक्टिवली जी सकते हैं, राइट। वायु, दैट इज एयर, इट्स ऑलवेज इन द मोशन, मूविंग, मूवमेंट। एयर रिफ्लेक्ट करती है मूवमेंट को। यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, life never stops, right? Even if someone dies, for example, you can be sad for a couple of days, for 10 days, for 15 days, but still you have to move with the life. That's the bitter truth. Yes, you have to move. Movement हमें सिखाती है air, right? So ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं नेचर के, इनमें बहुत पावर है। तो अगर हम इन्हें सीख लेंगे, इनसे कनेक्ट हो जाएंगे, एंड वी कैन spiritually heal ourselves, we can heal ourselves on all the levels. So that's the power of a nature. And yes, next is sunshine, right? So if you all agree with me that sunshine has the power, right? Or sunshine is the best medicine, we say, जब आप उस सन की रेज में थोड़ी देर भी स्पेंड कर लेते हैं, तो आपने बस ये नॉर्मली सुना होगा कि आपका विटामिन डी आपको मिल जाता है। सन की रेज जब आपकी बॉडी पे पड़ती हैं, अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो मिक्स होके विटामिन डी भी बनाता है। एंड सन की रेज से आपको हैप्पी हॉर्मोन्स बॉडी के जनरेट होते हैं, जो एक रिदम है। एक आपको पता है बॉडी की भी एक क्लॉक है, जैसे आपने अपने घरों में वॉल क्लॉक्स लगा के रखी हैं, वैसे हमारी बॉडी की भी एक क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक। उसको सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। इट्स इन द रिदम, सो इट ऑलवेज गोज इन सिंक विद द नेचर। ये क्लॉक जो बॉडी की है हमेशा नेचर के साथ चलती है। जब लाइट होती है सुबह, कुछ बॉडी के हॉर्मोन्स ऐसे निकलते हैं, राइट। जब सन आता है, हमको वो एक चीज दर्शाती है कि अब एक नया सवेरा हुआ है, राइट। हमारी बॉडी में से जो हॉर्मोन्स दिन के टाइम पे निकलते हैं, विच इज सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, ये सारे आपके डे टाइम में निकलते हैं। एंड व्हेन यू गो फॉर द स्लीप इन द नाइट, तो एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो आपको डिपिक्ट करता है कि नाउ इट्स द टाइम टू स्लीप, यू हैव टू शट डाउन ऑल द लाइट्स। एंड मेलाटोनिन जो आपका स्लीप हार्मोन है, वो 9 o'clock से 1 o'clock में एट पीक निकलता है। 9 o'clock ये स्टार्ट हो जाता है, एंड तभी कहते हैं कि हमें अपना जो स्लीपिंग टाइम है वो 9 to 10 के बीच में वी शुड स्लीप, बिकॉज ये हॉर्मोन्स भी, हमारी बॉडी की क्लॉक भी नेचर के ही अकॉर्डिंग चल रही है। दैट्स कॉल्ड सर्कैडियन रिदम। सो यस, हम यहाँ सनलाइट की बात कर रहे थे, तो कौन कौन, आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू ऑफ माय ऑडियंस हियर कि कौन कौन अपना टाइम स्पेंड करता है सन पे, सन के अंदर, चाहे सुबह के टाइम हो, चाहे वो जब सन सेटिंग या यू डू सूर्य नमस्कार। जस्ट राइट सन, just write sun, because I want to see the interactivity of my audience. All right, thank you so much everyone. So yes, सनशाइन में बहुत पावर होती है। हमें तो, हमारे तो रिचुअल्स में भी सन को गॉड माना जाता है, हम जाके उसमें जल चढ़ाते हैं, राइट। बट अगर आपसे उतना नहीं हो रहा, मैं आज की टीनेजर्स, जो स्टूडेंट्स
बैठे हैं उनको ये गाइड करना चाहूंगी कि पेरेंट्स को भी एटलीस्ट अपने स्टूडेंट्स को, अपने चिल्ड्रन को ये गाइड करें कि इन नेचर में, नेचर से कनेक्टेड रहिए। नेचर में बहुत पावर है। सन की रेज आप पे जब पड़ती हैं, एक आपकी बॉडी की पूरी एक क्या कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, और आपके माइंड के लेवल पे आपके हैप्पी हॉर्मोन्स निकलते हैं, एंड योर मेटाबॉलिज्म आल्सो इज फास्टेस्ट इन द मॉर्निंग, और वो शाम के टाइम पे इतना स्लो हो जाता है। हेंस हम कहते हैं कि खाना टाइम से खाइए, रात के 7 से 8 बजे के बीच में, सन सेटिंग के टाइम पे, जैसे पहले जमाने में बोलते थे कि सन सेटिंग से पहले अपना खाना खा लीजिए, बिकॉज जैसे ही आपका दिन ढल जाता है आपका मेटाबॉलिज्म भी बॉडी का गिर जाता है, बिकॉज वो नेचर के साथ चल रहा है। आपके कुछ हॉर्मोन्स बॉडी से ऐसे निकलते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देते हैं, एंड हेंस वो अर्ली डिनर का कॉन्सेप्ट कि आपको 3 आवर्स लगते हैं डाइजेशन में, सो दैट यू हैव अ गुड स्लीप और आपके हॉर्मोन्स अच्छे से सिक्रीट हो, जैसे मैंने बोला मेलेटोनिन। तो ये सारी हमारी सर्कैडियन रिदम है, ये सब हमको नेचर से सीखने को मिलेगा। सो यस, यू कैन गाइड देम अबाउट द 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। और अपना नेचर में, आपको पता है वेकेशंस की डेफिनेशन भी अब चेंज होने वाली है, बिकॉज जब भी नेक्स्ट वेरी सून द वैक्सीन हैज कम, बट यस यहाँ पे इंडिया में इट्स गोइंग टू टेक अनदर फ्यू कपल ऑफ मंथ्स टू कम, बट उसके बाद जब भी लोग ट्रैवलिंग पे निकलेंगे, ये मेरी सजेशन है कि सारे पेरेंट्स को, सारे टीचर्स को अपने चिल्ड्रन को गो विद देम, ट्रैवल विद देम, एंड उनको नेचर से कनेक्टेड जगह पे लेकर जाइए। मे बी टू अ सफारी, मे बी लाइक वी हैव द जंगल्स जहाँ पे सफारीज होती हैं, या कुछ ऐसे ओपन एरियाज में जहाँ वो ट्रीज से, जहाँ वो फ्लावर्स से, जहाँ वो आउटडोर कुछ एक्टिविटीज कर सकें, ऐसी जगह पे लेकर जाइए, इन स्पाइट ऑफ द मॉल्स एंड एवरीथिंग जहाँ हम जाते ही रहते हैं, ताकि उनको अभी से ही उन चीजों की वैल्यू पता लगे और वो नेचर से कनेक्टेड रहें। तो यस, तो ये तो रही बात नेचर की, हमें नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। नेक्स्ट वी कम टू न्यूट्रिशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। न्यूट्रिशन के बारे में सब जानते हैं कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, पर उसकी वैल्यू हमें सिखा दी है इस पैंडेमिक में, राइट। हर चीज पे आप देखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, कोई भी एडवर्टीजमेंट देखिए, सब में लिखा होता है इट इज गोइंग टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, राइट। बिकॉज पता है सबको कि आज की डेट में इम्यूनिटी की क्या वैल्यू है, राइट। आप सब जानते हैं कि अगर बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी इज व्हाट, आपकी बॉडी के अंदर की क्षमता, द पावर टू फाइट अगेंस्ट एनी वायरस और एनी डिजीज, और ये एक जो वायरस है या एक जो पैंडेमिक अभी चल रहा है, इससे भी लड़ने की क्षमता, दैट्स वाई अभी इम्यूनिटी की इतनी ज्यादा बात होती है। सारे फूड्स की बात होती है जो हमारे इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आप गूगल की सर्चेस पे देखिए, टॉप नंबर 1 सर्च यही रहती है, how to increase my immunity, what are the superfoods to increase my immunity, when the vaccine is going to come, how I can be healthy. These are all the Google searches on the top in this pandemic, right? How to cure my depression, because इतना माइंड के लेवल पे लोगों के स्ट्रेस आ चुका है, तो बस उनका दिमाग, उनकी सर्चेस भी ऐसी हो गई है, राइट। तो हमारी बस, आई जस्ट वांट टू से कि हमको वैल्यू सिखाई है न्यूट्रिशन में। So as you can see today, more than 95% of the chronic diseases, as I can say the lifestyle disorders, whether it is a diabetes, whether it is thyroid, any lifestyle disorder disease, it is only caused by our choices for the nutrition that we make in our life, right? Because we know कि कितनी toxicity है environment में है, then food में है, because of the pesticides and all. So न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई हैं लोगों को, उनमें विटामिन मिनरल्स की कमी है। आज आपने देखा होगा एक कोविड पेशेंट को सबसे पहले विटामिन सी और एक मल्टी विटामिन जिंकोविट, या कोई भी जो भी मल्टी विटामिन है, विटामिन सी, कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर्स, यही उनकी प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में होता है और उनकी एक डाइट होती है, राइट। एंड हेंस वो प्रिकॉशनरी मेजर्स तो हम ले ही रहे हैं, विच इज मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड वॉशिंग योर हैंड्स एंड कीपिंग द हाइजीन थिंग, बट उनकी अगर आप फूड लिस्ट में, प्रिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इट्स जस्ट द इम्यूनिटी बूस्टर्स, राइट। इट इज द गुड न्यूट्रिशन। तो आपको गुड न्यूट्रिशन की वैल्यू सिखाई है इस पेंडेमिक में, राइट। So you have to make a choice. You have the choice what you put into your body, right? So yes, nutrition की value सिखाई है, right? All right. So if you are with me, just type in nutrition so that we can move forward to the next topic. Just type in nutrition. Just nutrition.
Yes, somebody has written nowadays we get lesser time due to weather change. Yes. Sun, I want everyone to type nutrition. Are you all with me? Yes. Great. Thank you so much, everyone. And next, we move to a very important uh, topic and very important thing which is going on in everyone's mind, that is fears. कुछ तरीके के डर बैठ गए हैं, कुछ तरह के डर हमारे माइंड्स में बैठ गए हैं कि आ, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, मेरा फ्यूचर कैसे होगा और ये चीज कब खत्म होगी. आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग ऑन इन एवरीवन्स माइंड, बट just read the quote on the slide given on your screens that COVID, or for that matter any other virus or any other thing, for this particular time being, I have written COVID enters the brain first and then the body, right? if we talk if you will talk about it 24 hours, right? I can understand the patient who is recovering from the COVID or who has not yet, by God's grace, it's कि कोविड नहीं हुआ, तो हमारे अंदर एक डर है कि सबसे पहले हम दिमाग में अपने ये लेके बैठते हैं कि अरे हम हमें ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, राइट? आपने अपने ब्रेन को उस तरह से कंडीशन कर दिया है. हमारे ब्रेन में पहले आता है, हम सारा दिन एक ऐसी टॉक्सिक न्यूज देखते हैं, जब भी किसी रिलेटिव से बात करते हैं, ओ अच्छा उन्हें कोविड हो गया, ओ अच्छा, ओ यस इट्स वेरी सैड, आई डोंट नो हाउ इज इट गोइंग टू गो, राइट? ऐसी बातें करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हमारे मुंह से निकलते हैं कि पता नहीं कब कोविड जाएगा, पता नहीं हमारी लाइफ कैसी हो गई है. इंस्टेड, कैन वी स्पीक समथिंग पॉजिटिव? कैन वी कंडीशन आवर ब्रेन लाइक दैट? बिकॉज जितना आप अपने ब्रेन में इस कोविड के बारे में बोलते रहेंगे, आपका ब्रेन उसी तरह से कंडीशन हो जाता है. बिकॉज ब्रेन की भी एक लैंग्वेज है. द वे वी कम्युनिकेट विद अदर पीपल, दैट इज आवर लैंग्वेज. वैसे ही एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं, एनएलपी, जो आपके ब्रेन की भी एक लैंग्वेज है, जो आप उसको बोलेंगे, जो आप उसको अपने ब्रेन को बोलेंगे, वो वही सुनता है और उसी तरीके से आपकी बॉडी वो अचीव करती है. तो राइट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू just avoid that toxic news which talks about COVID. I'm not saying that you don't have to be aware. आपको सारी सेफ्टी मेजर्स जो चल रही हैं, जो भी प्रिकॉशंस आती हैं या कोई ऐसी अपडेट आती है न्यूज की, यू हैव टू बी अवेयर. यू कैन सी इट वंस इन अ डे, बट नॉट एवरी टाइम. व्हेन योर टीवीज, आई कैन मुझे कॉल्स आती हैं कि अरे मुझे ऐसे हो गया, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है. आई ऑलवेज आस्क देम व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर एट होम राइट नाउ. वो कह रहे हैं अरे टीवी चल रहा है, हम देख रहे हैं, इतने केसेस आ रहे हैं. केसेस आ रहे हैं, यस, वी नीड टू बी अवेयर कि अच्छा ये चीज चल रही है, बट वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट ऑल डे लॉन्ग. दैट्स व्हाट आई मीन, कि अपने ब्रेन में पहले आपके आ जाता है. अगर आप अपने ब्रेन को बोलेंगे अरे मुझे तो ये हो जाएगा, मुझे तो वो हो जाएगा, वो हो ही जाएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव कंडीशनिंग करिए. यू कैन से दैट आई एम हीलिंग. The positive situation is going to come. The vaccine has already come in the other country. It's going to come very soon here. We are dealing with it patiently. These all are the positive statements that you can say. You can't change the situation. और अगर उसको वर्स करते हैं आप, जब आप इसके बारे में 24 घंटे बात करते हैं, तो पहले आपके ब्रेन में आता है, उसके बाद आपकी बॉडी में आता है, राइट? सो अपने ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलिए, राइट? तो yes, just type in positive. Positive, everyone. We all are here with the positive mindset. Just type positive. I want to see how much my audience is interactive and active. Yes. Yes, very true. Someone has written that मैम हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमें फाइट करनी चाहिए. ऑफ कोर्स फाइट करनी है हमको. इनफैक्ट मैं फाइट भी वर्ड हमने लिखा है, वी आर फाइटिंग एंड वी आर लर्निंग, राइट? Can we use the word learning instead of fighting? Of course, we are fighting with it.
Yes, it's a struggling time. These are the tough times that we are going through, but we are learning a lot. I think में से बहुत लोग एग्री करेंगे, इस लॉकडाउन में बहुत लोगों ने ऐसी चीजें करी होंगी जो उन्होंने कभी नहीं करी बिफोर लॉकडाउन, राइट? Someone is cooking. All of the people, they have become chefs on the YouTube, right? सब लोग कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं करा. So कुछ ना कुछ तो सिखाया है, right? That there's always a learning. Yes, following our passion and being positive. So yes, we should search for the solution. I can see the chats. We should always talk about the solutions. Thank you so much, everyone. Next, we go ahead with our, as I was talking about the mental fear. So you have to stop the negative statements, right? You don't have to talk all the time, whether it's your friends, whether it's your relatives. सबसे पहले जो फोन आता है आप कहते हैं, ओ अच्छा देखो कैसे होगा, अभी तो इतनी देर हो गई है, इतना टाइम हो गया है, ठीक है नहीं होने को आ रहा. आप सारा दिन आपको नोटिस भी नहीं होता, यू डोंट इवन रियलाइज कि आप कितना बात करते हैं इसके बारे में, राइट? तो वी ourselves are restraining this thing to not go from our bodies and from our brains, right? So you have to say some positive affirmations, right? See on the screen, I am powerful, I'm an encourager, I'm awesome, I'm sincere, I'm abundance. You can see all the positive things. And when you speak these things, right, आपका ब्रेन इनको एक्नॉलेज करता है, ब्रेन कहता है ओके ठीक है, ब्रेन उसको एक्नॉलेज करते हैं, देन आपकी बॉडी भी अकॉर्डिंगली चलती है, राइट? अगर आप कहेंगे पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं मुझे ना हो जाए, इंस्टेड कैन यू से आई एम पावरफुल, द डिवाइन इज विद मी, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, I have patience, I am strong, right? I have abundance in my life. I'm thankful to the God that I'm safe. Can you just repeat these affirmations for at least just 5 to 10 minutes daily when you wake up and see the change that it's going to bring in your life, right? So these are the I am affirmations, like कि मैं क्या हूँ. अगर आप बोलेंगे कि I'm sad, I'm depressed, I don't know what to do. I'm feeling, lonely. So your brain says, okay, let it be then. If you'll say, I'm happy, I'm loyal, I'm loved, I have so much positivity around me, I have a good family, I have everything to eat, I have shelter. कितने लोग अब अभी इस टाइम पे दे आर इन सच डिफिकल्ट सिचुएशंस यू कांट इवन इमेजिन, राइट? आप किसी हॉस्पिटल्स में आप लोगों को देखिए, दे आर गोइंग आउट टू देयर जॉब्स, राइट? सो इफ यू आर एट होम, इफ यू आर सेफ, then just pay gratitude to the God and say these positive affirmations for I am, right? All right. So next is my transformation journey. So yes, I am sharing here with some few points that actually brought a lot of change in my life. So if I can share something, sharing is caring, as we all know. कि जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा. I was actually very overweight, right? I was around 85 kilos around 1 year ago, and I was suffering from quite a few lifestyle disorders, कि नींद नहीं आना और एनर्जी लेवल स्लो होना और वेट इतना ज्यादा होना, उसके कारण स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना. So एक टाइम तक तो ठीक था, बट देन सडनली व्हेन टेस्ट रिपोर्ट्स करवाई, जब मेरा लिपिड प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा निकला, जब निकला कि नाउ इट्स हाई टाइम, आई नीड टू डू समथिंग, वही कहते हैं ना, एक अवेकनिंग होती है. तो तभी, एंड आई वाज इन अ वेरी गुड कॉर्पोरेट जॉब एट दैट टाइम. तो मुझे वो क्विट करनी पड़ी जॉब, और मैंने अपनी लाइफस्टाइल को सिर्फ चेंज करा है, सिर्फ डाइट को अपनी चेंज नहीं करा, अपनी जो एक रूटीन है, जो आपकी डेली हैबिट्स हैं, लेट मी टेल यू, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं. यू हैव टू लिव ओनली सिंगल डे, कहते हैं ना, बस कल की एक रूटीन सेट कर लो. ऑफ कोर्स आगे मैं गोल सेटिंग पर आऊंगी, पर आप अपनी डेली हैबिट्स को अगर ठीक कर लोगे, दे आर गोइंग टू डिस्क्राइब यू what kind of person you're going to become. So I changed my habits. I
made sure that I'm sleeping and waking up on time. I used to have very, I started having a very good nutritious diet. अपनी डाइट में तो ऑफ कोर्स चेंजेस करे ही करे, बट अपनी डाइट के साथ साथ मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करे. So I want to share with you now a slide in which you can see on the left hand side, you can see my pic wherein I was around 85 kgs. And today, it was a year ago, year and a half, and today I'm in my 50s, right? So, and the quote is, it's not a diet, it's a lifestyle change. It's completely a lifestyle change. आप कोई भी डाइट्स ले लीजिए, आपको डाइट्स बहुत सारी आप इंटरनेट पे, गूगल पे अवेलेबल होती हैं. And बट द ओनली थिंग इज यू गेन बैक दैट थिंग, राइट? आप उस चीज को वापस गेन कर लेते हैं बिकॉज वो आपका लाइफस्टाइल नहीं बना होता. आपका वो शॉर्ट टर्म गोल होता है कि बस मुझे अपना वेट लॉस करना है. बट अगर आपको एक लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, जिसमें आपके हेल्दी हैबिट्स आते हैं, आपका स्लीप टाइम आता है, वाटर इनटेक आता है, आपकी डाइट आती है, हाउ यू मैनेज योर stress levels. I incorporated yoga, and thanks to my yoga teacher, if she's there or someone somewhere, because she incorporated yoga in my life. I started yoga, which completely changed my life. It's a life changing thing, right? I'll come to yoga as well. तो yoga ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया. I used to do a lot of meditation, तो उसने मेरे माइंड को काम करा. सिर्फ एक डाइट वर्क नहीं करती. So you can see how I changed myself, and it's not overnight thing. आप सोचो कि अभी मेरा वेट इतना है और अभी मुझे 1 महीना दीजिए और मेरे को इतना वेट लॉस करवा दीजिए. It doesn't happen like that. आपका वेट ओवरनाइट गेन नहीं हुआ था, तो ओवरनाइट लूज भी नहीं होगा. If you want a healthy life, just give yourself some time. I did it in around 1.5 years. I gave myself quite a lot of time, and I quit my job, and now I'm in this passion wherein I have changed myself, and my motive is to change your lives for a better future. How you can change your lifestyle, how you can also live a healthy life, right? So yes, if you are there with me, just type lifestyle, because it is the key. It is the key to all your problems. Just type in lifestyle. That's it. Thank you so much, everyone. So yes, lifestyle is the key to all your problems. आप कोई भी metabolic disorder उठा के देख लीजिए. अगर आप एक diabetic patient को देखते हैं, एक thyroid patient को देखते हैं, आप वो इतने सारे insulin shots पे होते हैं, इतने सारे medicines पे होते हैं, पर उनसे जाके पूछो ना आप सोते कितने बजे हो, जैसे हाँ 1-2 तो बज जाते हैं, नींद ही नहीं आती. सुबह का टाइम उठने का फिक्स नहीं है. अच्छा, लंच हो रहा होता है उनका 4-4:30 बजे. You know what I'm talking about? The timings of the meals, the sleeping and waking up time, the kind of water, right? आपको लग रहा होगा कि water is the most forgotten nutrient. अपनी डाइट के साथ साथ आप वाटर कितना इनटेक करते हैं, आपकी रोज की हैबिट्स कैसी हैं, एंड डिसिप्लिन्ड है आपकी लाइफ या नहीं. तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत मैटर करती हैं. सो लाइफस्टाइल इज द की. इफ यू आर सर्चिंग कि मुझे कोई शॉर्ट टर्म कोई नुस्खा, मुझे कोई सोल्यूशन, कोई रेमेडी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता. अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, जिसमें आप रोजमर्रा की अपनी लाइफ में अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे. सो इट्स गोइंग टू क्रिएट वंडर्स फॉर यू, राइट? नेक्स्ट हमने मेंटल फियर की जहां बात करी, नेक्स्ट आई टॉक अबाउट द फिजिकल फियर. यस, बॉडी के लेवल पे हमको फियर है कि हमको ये वायरस ना हो जाए, या हमको ये कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी डिजीज ना हो जाए. सो यस, ऑफ कोर्स, टू you have to boost your immune system to help fight this COVID-19 as well as all the other viruses or bacteria or any other disease for that matter. अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी की पावर है अंदर से डिजीजेस को लड़ने की, राइट? सो I will talk about some of the immunity boosters. These are the 3 main immunity boosters, which is the nutrition. Your diet should be very good, of course. Then the breathing exercise that you can incorporate in your daily routine. आप कुछ breathing exercise, जैसे कि हमें पता है कुछ प्राणायाम होते हैं, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, और there's a deep breathing kind of a thing, जो आपके अंदर की जो एक कैपेसिटी है टू फाइट विद द डिजीज उसको बढ़ाता है, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स द फिजिकल एक्टिविटी, जो आपका स्टेमिना, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी, आपकी ओवरऑल हेल्थ को
अच्छे एक स्टेट में रखता है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स जो आपके एक इम्यूनिटी बूस्टर्स की तरह काम करते हैं. नेक्स्ट I'm talking about how nutrition can boost your immunity. These are some of the things that I've written, I've mentioned. As you can see, anti-inflammatory, antiviral, antioxidants, राइट? हम सब ने नाम सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स. अगर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं पता तो आज मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. एंटीऑक्सीडेंट्स एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को वायरसेस से, बैक्टीरिया से, जो एक फ्री रेडिकल्स हैं, एक फ्री रेडिकल बॉडी में होते हैं और बाहर से भी, एनवायरनमेंट से भी हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो उनसे हमको एंटीऑक्सीडेंट बचाता है, राइट? इट्स जस्ट लाइक कि हमारी बॉडी में या बाहर एक कार है, उसका एक व्हील नहीं है, अब वो एक फ्री रेडिकल है जो घूम रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे एक अपना व्हील प्रॉपर मिल जाए, और ये एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जो अपने साथ एक स्टेपनी लेके घूमता है, ठीक है? तो उस एंटीऑक्सीडेंट ने उसको फ्री रेडिकल को नॉर्मलाइज कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और हमारी बॉडी उस डिजीज से बच गई. उस फ्री रेडिकल जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में एंटर करना था उससे बच गई, जो उसने एक नुकसान पहुंचाना था उससे बच गई, बिकॉज इस एंटीऑक्सीडेंट ने हमारी बॉडी को जो है सेव कर लिया. तो दैट्स द पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो मैंने लिखा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन होता है किसी भी टाइप की स्वेलिंग आपकी बॉडी में जब हो जाती है, और इचनेस है या कहीं बॉडी में रेडनेस है, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, राइट? और सारी आपके डिजीजेस का रूट कॉज होता है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन है. कभी किसी सेल्स की इन्फ्लेमेशन है, कभी किसी ऑर्गन में कुछ इन्फ्लेमेशन है. Inflammation means some kind of swelling, some kind of redness, some kind of problem with the functioning of that organ or gland or part of that body. So anti-inflammatory, antiviral and antioxidants, ये antioxidants के ही parts हैं. तो आपको ये कैसे मिलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द 7 कलर्स जिसको हम विबग्योर भी कहते हैं, राइट? वोयलेंट एंड इंडिगो एंड ब्लू, ऑरेंज, रेड, all these colors, if you include them in your diet, I would request, if all the students, all the teachers, or all the parents who are listening to me right now, please include all the colors in your diet. It should be a colorful plate, जिसको हम कहते हैं रेनबो डाइट. रेनबो प्लेट होनी चाहिए, बिकॉज जितना कलर्स होंगे आपकी डाइट के अंदर, उतनी ही आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे. दैट मींस द पावर टू फाइट दोस टॉक्सिन्स. उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं. आप एक कैरेट को या आप एक ब्रोकली को जब आप लेते हैं, उसमें जो रेड पिगमेंट और ग्रीन पिगमेंट होता है ना, उस पिगमेंट की भी पावर है. एक एप्पल्स में हमने सुना था, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. कभी आपने सोचा क्यों ऐसी क्यों सेइंग बनी है? एप्पल में ऐसा क्या है भाई? व्हाई इज इट keeps the doctor away? बिकॉज एप्पल में आपके अराउंड 2000 to 3000 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एक एप्पल में. इतनी पावर है उसकी, राइट? एंड ऑफ कोर्स फाइबर एंड ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स आर देयर, बट एंटीऑक्सीडेंट्स इतने ज्यादा हैं कि आपके सारे टॉक्सिन्स को वो एट बे, इट कीप्स ऑल द टॉक्सिन्स एट बे, एंड हेंस द कोट. Everything has been made with the logic, right? So you have to include all the 7 colors. So what you can do, you can include those bell peppers, which are red, yellow, and in green in color. You can include carrots, which are seasonal as well, broccoli, and tomatoes. Tomatoes में बहुत अच्छा lycopene होता है. So these are all the antioxidants के names है जो मैं आपको बता रही हूँ. The only thing which I want to focus is just include the colors in your plate. It should be a rainbow plate, right? Try to include it, right? And we talk about 6 tastes. 6 tastes. आयुर्वेदा में 6 टेस्ट बताए गए हैं, which I'll tell you in English, which is sweet, salty और bitter. तो हम जानते हैं, एक होता है sour, एक pungent और एक होता है astringent, right? Astringent जैसे हम लगाते हैं कि स्किन को क्लीन करने के लिए. सो टेस्ट भी 6 होते हैं, जिसमें कि सॉल्टी हमें पता है, स्वीट पता है, बिटर पता है, ये टंग के हमारे टेस्ट बड्स होते हैं. एक सार होता है विच इज खट्टा. एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट होते हैं जो थोड़े कसैले, जो थोड़े एक एसिडिक नेचर के होते हैं. तो कहते हैं जब हमारी एक बैलेंस्ड प्लेट होती है ना, आयुर्वेदा बोलता है, जब हमारी एक बैलेंस्ड प्लेट होती है जिसमें सारे अगर 6 टेस्ट मिला के रख दोगे ना, दैट इज योर कंप्लीट मील, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू अ पावर फॉर योर न्यूट्रिशन. और कहते हैं कि वैसे बिटर थिंग्स क्यों कहते हैं, करेला खाइए, नीम इतना अच्छा माना जाता है, दीज आर ऑल बिटर.
in nature, right? But they're amazing for let's say for diabetic patient, और जिसको कोई भी lifestyle disorder है, उनको लौकी कहते हैं, जूस पीजिए एंड करेले का जूस पीजिए, बिकॉज जितनी बिटरनेस होगी चीजों में उतनी ज्यादा उनकी डिटॉक्सिफिकेशन पावर होती है। और वैसे भी आपने एक प्लेट में देखा होगा हमारे ट्रेडिशंस के अनुसार, जब हम चले तो उस प्लेट के अंदर आपका एक कंप्लीट मील, जब आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, व्हेन यू गेट दैट कंप्लीट थाली, उसमें आपका मेन मील तो होता ही है, विच इज नमकीन, विच इज सॉल्टी एंड विच इज सार। आपके साथ एक डेजर्ट होती है, उसमें स्वीट होता है, कुछ आपकी एस्ट्रिंजेंट पंजेंट जिसके अंदर पिकल जरूर होता है, डू यू हैव पापड़ आल्सो इन योर प्लेट, राइट? तो ये सारी चीजें आपकी डाइजेशन में हेल्प करती हैं। आपका जो सॉल्ट, स्वीट और बिटर, जो बेसिक टेस्ट के अलावा जो टेस्ट हैं, वो भी एक आपकी कंप्लीट एक थाली में इंक्लूड करे जाते हैं, बिकॉज कहते हैं जब तक आपकी थाली में 6 टेस्ट अगर आ जाते हैं ना, so you will always be satisfied and you will never overeat. That's the rule. That's the basic rule. So yes, include and try to include bitter things. Bitter है, but आपकी body में वो amazing एक आपको feel, आपकी detoxification करते हैं, right? So yes, these all comes under your anti-inflammatory, antiviral, and antioxidants. Yeah, can we mute ourselves, please? हेलो भेज हेलो Yeah, I request everyone to mute themselves. कल्ला को नहीं जाको हरिओम को Sir, can you mute the participants? Yes, thank you. So yes, these were the things that I was talking about. Yours antioxidants की मैंने बात करी, मैंने कलर्स की बात करी, मैंने टेस्ट की बात करी, राइट? तो जिसमें हमने एंटी वायरल में आजकल सब एक बना के, बिकॉज स्पाइसेस में जैसे मैंने बोला, दे आर ऑल पंजेंट, दे आर ऑल एस्ट्रिंजेंट इन नेचर। तो जितनी भी स्पाइसेस की आपकी किचन के जो स्पाइसेस है, जितनी उनमें पावर है उतनी किसी में नहीं है। सो वेदर इट्स रॉ टर्मरिक, द जिंजर, द तुलसी, द ब्लैक पेपर, द सिनेमन, जिससे आप अपनी एक हर्बल टी आजकल, जिसे काढ़ा भी कहते हैं, क्यों ऐसा शुरू हुआ था? बिकॉज इसका रीजन है, इन स्पाइसेस में भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्लस इनकी जो एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो आपका एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती हैं, आपको जो है फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन से बचाती हैं। सो ऑफ कोर्स यू कैन हैव दिस हर्बल टी, बट नॉट लाइक कि ओवरडू नहीं करना किसी भी चीज को। आई हैव सीन पीपल कंज्यूमिंग दिस हर्बल टी व्हिच इज मेड फ्रॉम द स्पाइसेस, जो थोड़े गर्म होते हैं एक उनकी नेचर में, तो उनको आपको 3 to 4 times 5 times नहीं पीना है, जस्ट हैव देम ट्वाइस और मे बी once before going to bed or any time in a day, right? So स्प्राउट्स की मैं बात करूंगी आज, सब पेरेंट्स को, चिल्ड्रंस को, जो भी हमारे अभी सुन रहे हैं लोग, कि स्प्राउट्स अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए, बिकॉज एज वी नो कि विटामिन सी कितना अमेजिंग बूस्टर है, एंड विटामिन ई अमेजिंग बूस्टर है। विटामिन सी जब आप स्प्राउटिंग करते हैं अपने दालों की, तो विटामिन सी का कंटेंट उसमें थ्राइज हो जाता है, इट बिकम्स 3 times, बिकॉज जो फर्मेंटेड, जो उनकी जर्मिनेशन का प्रोसेस है, उसके अंदर सारे विटामिन और मिनरल्स की पावर बढ़ जाती है। दैट्स द पावर ऑफ जर्मिनेशन, दैट्स द पावर ऑफ योर स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स में यू कैन स्प्रिंकल सम लेमन जूस इफ इट सूट्स योर थ्रोट, एंड आप स्प्राउट्स इज अ सुपर फूड, आई मस्ट से, डू इंक्लूड देम इन योर डाइट, डू इंक्लूड देम इन योर चिल्ड्रंस डाइट। And next, to have to incorporate the healthy fats, which are nuts, which are easily available, almonds, walnuts, they are full of vitamin E, right? You can have the healthy seeds, like sesame seeds हो गए आपके, poppy seeds हो गए, sunflower seeds, pumpkin seeds। ये जो seeds, nuts और जो fish consume करते हैं non vegetarians में, या eggs हैं, this is a very good source of healthy fats। हमारी body को healthy fats की भी जरूरत होती है, जो हमारे brain के लिए बहुत important है, right? And yes, of course, no to processed foods because they weaken your immunity। आपकी इम्यूनिटी, आपकी जितनी भी आप ये सारी चीजें ले रहे हैं, और आपने जितना ये प्रोसेस्ड फूड्स आता है, which comes in the packet, which is made in plant, don't consume it, which comes from plant, please consume it। आई होप यू अंडरस्टैंड द कोड, कि प्लांट में जो फैक्ट्री में बन रहा है, जो आपको पैकेट्स में बंद करके सेल किया जा रहा है, दे आर फुल ऑफ टॉक्सिन्स, दे आर फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, तो उनको प्लीज अवॉइड करिए, एंड अपनी जो नेचुरल चीजें हैं, विच इज प्लांट मेड फूड्स, उनको कंज्यूम करिए। एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट एंड शुगर हमेशा मॉडरेशन में रखिए। हर कोई शुगर की बात करता है, बट सॉल्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट।
7 grams, that is 1 teaspoon you should have in a day. Now can you imagine how much salt we intake? Salt आपकी बॉडी में वाटर को रोक लेता है, होल्ड कर लेता है, आपकी वाटर रिटेंशन करता है. दैट्स वाई लोगों को फेस पे एंड फीट में स्वेलिंग हो जाती है. सॉल्ट की भी एक लिमिट है, राइट? एंड स्पेशली फॉर द बीपी पेशेंट्स एंड एवरीवन, सॉल्ट वैसे ही जनरली भी आपको 1 टीस्पून, दैट इज 5 to 7 ग्राम्स ही दिन में लेना चाहिए. इट्स बेटर यू टेक अ स्पून, कीप इट असाइड, और उसी में अपना आप नमक डालते जाइए. पहले से डाल के मत रखिए. दैट्स द ओनली वे टू डू इट. और जस्ट एक ही बार खाइए. सो वट एवर सूट्स यू, राइट? एंड अश्वगंधा एंड हनी, दे आर सुपर फूड्स. अगर कोई भी आपको स्लीप के इश्यूज हैं, किसी को कुछ स्ट्रेस है, तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं. अश्वगंधा इज इंडियन जिनसिंग बोलते हैं इसको, इसमें बहुत पार होती है. और हनी विच इज अ सुपर फूड विच इज वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन एज वेल, और आप हनी और अश्वगंधा को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. All right, so this was all about nutrition. So yes, next we go to the gut brain connection, right? How many of you know what is gut? What is gut? Can you write in the chat box? Whatever you know, just one word. All right. Gut brain connection. Gut health is very important. Gut होता है आपका gastrointestinal tract, आपकी ईसोफेगस, आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन, ये पूरा एक जो आपके ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं, जो आपका गट है, स्पेशली द इंटेस्टाइन थिंग, ये आपके बहुत अच्छे गुड बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करते हैं, राइट? और गट और आपका ब्रेन जो है ये इंटरकनेक्टेड है विद एक नर्व होती है जिसको वेगस नर्व कहते हैं. तो गट और ब्रेन इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए कहते हैं अपने गट को अगर हेल्दी रखोगे ना तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली हेल्दी होता है. तो गट की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर हमें अपने ब्रेन को एक अच्छी स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ में आना है, gut health plays a very important role, right? You have to understand the connection. It is connected. अगर आपके gut में कोई problem होगी ना, directly the signal is going through to your brain, right? gut में कुछ irritation है, gut में कुछ inflammation है, आपका gut healthy नहीं है, आप किसी मेडिकेशंस पे हैं फॉर द लॉन्ग टाइम. क्या होता है ना कि हम न्यूट्रिशन लेते हैं अच्छा, पर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी? आप कैल्शियम ले रहे हैं, आप विटामिन डी लेते हैं, उसके सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, फिर भी क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं देखिए मैम हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स हमें पता नहीं कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, या हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है. क्या उनसे आपने पूछा है कभी कि आपने आपसे पूछिए कि कौन सी ऐसी मेडिकेशंस पे हूँ, या क्या है ऐसा एक लाइफस्टाइल है, या क्या और चीजें ऐसी तो नहीं है जो मैं गलत खा रही हूँ जो इसकी न्यूट्री एब्जॉर्प्शन को रोक रही हैं, राइट? सिर्फ एक खाना नहीं होता. आई ऑलवेज से यू मस्ट हैव हर्ड द कोट यू आर व्हाट यू ईट, but I always say you are what you eat, what you absorb, what you assimilate, and what your body digests. That's very important. कि सिर्फ ये नहीं कि बस खा लिया और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता. द लॉट ऑफ फैक्टर्स फॉर एब्जॉर्प्शन, और उसमें सबसे बड़ा जो मेजर रोल हमारा गट होता है, दैट इज इंटेस्टाइन एंड स्टमक पार्ट, जहाँ पे आपके इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं. तो उन बैक्टीरिया को अगर आप फीड कराएंगे, दैट इज ऑल्सो थ्रू डाइट हम कर सकते हैं, और हम अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं, और उससे हमारा ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. तो next I talk about, you can see on the screen that 90% of the serotonin is one of the happy hormones. I am coming to the hormones कि happy hormones क्या होते हैं. तो serotonin is also one of the happy hormone which is made in your gut. सबको लगता है ये तो ब्रेन से निकलता है, हमारा हार्मोन है, ये हैप्पी हार्मोन है, बट इट इज अ फैक्ट दैट 90% ऑफ योर दैट सेरोटोनिन विच इज अ फील गुड हार्मोन, वो गट में प्रोड्यूस होता है. व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर गट is going to affect your mood, your anxiety, your depression, your focus, your memory, all your cognitive issues जो भी आपके ब्रेन में चल रहे होते हैं, because आपका गट आपके ब्रेन से कनेक्टेड है. So yes, how we can keep ourselves, keep our gut healthy, right? गट में बहुत पावर है. आपने सुना होगा ना कि what's your gut feeling? I hope you all must have heard कि बहुत लोग बात करते हैं कि यार मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये नहीं होगा, कहते हैं ना.
क्यों? क्योंकि गट एक बहुत पावरफुल चीज मानी जाती है। गट एक फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, राइट, जो आपको बहुत पावर देती है। हेंस गट की हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हेल्दी ईटिंग में हम प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स इंक्लूड करते हैं। प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गुड बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी में होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस है, बिफिडोबैक्टीरिया है, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं। आपने सुना होगा कर्ड में बहुत अच्छा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो दैट्स व्हाई कर्ड इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, राइट। ऐसे ही कुछ और भी सोर्सेज आते हैं, केफीर होता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज जो आपके प्रोबायोटिक्स, जो वो एक हेल्दी बैक्टीरिया हमें अपनी डाइट में लेने बहुत जरूरी होता है। एंड प्री होता है जो प्रो को फीड करेगा। प्रीबायोटिक्स वो होता है जो प्रोबायोटिक्स के लिए खाना है। प्रोबायोटिक्स इज अ लाइव बैक्टीरिया, इट्स अ गुड बैक्टीरिया विच इज इन योर गट, राइट। उसके कुछ सोर्सेज हैं, और प्री जो है वो उसको बढ़ाते हैं, मतलब प्रो का खाना कह सकते हैं एक तरह से प्रीबायोटिक्स है। तो प्रीबायोटिक्स में आपके अनियंस, गार्लिक, लीक्स, ऑल दीज स्पाइसेस एंड एस्पेरागस, ये बहुत सारी चीजें आपके प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स आपके अच्छे बैक्टीरिया को, गट को अच्छी एक हेल्थ दे सकते हैं। नेक्स्ट इज योर लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स। अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, अगर आपके टाइमिंग्स ऑफ द मील्स अच्छे नहीं है, आपका गट कभी भी हेल्दी नहीं रह सकता। एंड यस, द लास्ट थिंग विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अवॉइड अननेसेसरी मेडिकेशंस। आपका पेशेंस लेवल लोगों का हमारा कितना कम हो गया है ना, आपको पता है। नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, आई एम जस्ट टॉकिंग नॉर्मली एज वेल, कि जब भी हमको एक हल्का सा फीवर भी होता है, कई लोगों में ऐसा होता है, बिकॉज दे डोंट हैव द पेशेंस लेवल, दे जस्ट पॉप इन द पिल ऑफ क्रोसिन और पैरासिटामोल और व्हाटएवर, और दे हैव द पेन्स इन देयर बॉडी, दे विल नेवर गो फॉर द नेचुरल थिंग, बिकॉज हमारी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है। ठीक है, अच्छा पेन हो रही है, पेन किलर उठा लिया कोई भी, राइट। तो ये जो आप जितनी जो एंटासिड्स हैं, आई मस्ट से, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जितने भी एंटासिड्स आप लेते हैं, वो आपके स्टमक के एसिड को इतना कम कर देता है, आपकी गट के हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। तो उस समय तो आपको टेम्परेरीली रिलीफ जरूर मिलता है उन एंटासिड्स को लेने से, but they are affecting your gut health, right? So just be aware कि कौन कौन सी medications आप दिन में लेते हैं। अगर आप उनको avoid कर सकते हैं, प्लीज उनको avoid करिए। अगर आप बिल्कुल ही पेशेंस लेवल से इट्स अनटॉलरेबल, देन इट्स अनदर थिंग, बट अगर आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, डोंट गो फॉर एनी मेडिकेशंस और एनी पेन किलर्स, बिकॉज you know you'll be shocked to know कि there's a book also which says death by prescriptions. there's a book written, right? जो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शंस में आपको मेडिसिन लिखी जाती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं कि जो आपको अभी पता नहीं लगेंगे, आपको लॉन्ग टर्म में जाके इट कैन गिव यू यू नो अ सीरियस प्रॉब्लम, राइट? सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ अननेसेसरी मेडिकेशंस दैट यू आर टेकिंग, राइट? सो दैट्स अबाउट योर गट हेल्थ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। So yes, everyone, please type in the chat. Time for my audience to show some activity. Just type in gut health, GH. That's it. Type in GH if you all are on the same page with me. Okay. Thank you, everyone. Okay. Next, we come to, as I was telling you about the hormones. Yes, now we come to the topic, which is happiness hormones and how to drug dose yourselves, right? जिससे भी आज पूछो, वो कहते हैं कि हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, फीलिंग नहीं आ रही, गुड फीलिंग नहीं आ रही, सैडनेस लग रही है, राइट? हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो आपके, जिनको हैप्पी हॉर्मोन्स बोलते हैं। हॉर्मोन्स आर नथिंग बट दे आर द केमिकल सेक्रीशन फ्रॉम द ग्लैंड्स जो आपकी बॉडी से होते हैं, और ये हॉर्मोन्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, राइट? तो इसी तरह से एक स्ट्रेस हार्मोन होता है और एक हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं। तो मैंने जैसे लिखा है, वी कॉम्बैट सैड, विच इज SAD, stress, anxiety, and depression with our dose. And what's that dose? DOSE, which is the four happy hormones, that is dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphins. These are the four names of the happy hormones. And we say that it's a dose. मैं लोगों से पूछती हूँ, अच्छा वो कहते हैं आज हमने अपनी थायराइड की डोज ले ली, आज हमने अपनी बीपी की डोज ले ली, आज हमने अपनी डायबिटीज की डोज ले ली, क्या आपने अपनी हैप्पीनेस की डोज ली है? अपने आप से पूछिएगा अभी, राइट? कि जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हम अपनी बॉडी से सिक्रीट करवा सकते हैं, क्यों ना उस पे भी कुछ एफर्ट्स डालें, राइट? एंड ये हैप्पीनेस हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ में एक
अभी हमने सेरोटोनिन की बात देखी कि कैसे वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हैप्पी हार्मोन है जो हमको एक मूड को स्टेबलाइज करता है। सेरोटोनिन वो होता है जब हमारी गट हेल्दी होती है, गट में 90% ऑफ दैट हार्मोन इज प्रोड्यूस। लेट मी रिपीट इट, सो गट हेल्थ का हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट इज you can see on the screen how we can naturally release those happy hormones through a healthy diet, of course, through sunshine. सुबह सुबह जितना आप टाइम, थोड़ा सा ही 15-20 मिनट इफ यू स्पेंड इन द सन, आपका सेरोटोनिन ऑटोमेटिकली रिलीज होता है, राइट? आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देन नेचर, जितना नेचर से कनेक्टेड रहेंगे उतने आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि नेचर के 5 एलिमेंट्स से जितना कनेक्टेड रहोगे उतने ही आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। एंड जोक इट आउट। व्हाट डू यू मीन बाय जोक इट आउट? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप खुद के व्हाट्सएप मैसेजेस जितना पढ़ के अकेले में बैठ के हंस रहे होते हैं कभी-कभी, राइट? व्हाई नॉट टू कीप अ सेशन विद योर फैमिली एंड हैव दैट फैमिली बॉन्डिंग, जिसमें आप बैठ सकते हैं, जिसमें आप कुछ सेंसिबल ह्यूमर की बात कर सकते हैं, जिसमें यू कैन वॉच अ कॉमेडी सेशन, अ कॉमेडी प्रोग्राम विद ऑल योर फैमिली मेंबर्स एंड हैव अ गुड लाफ, बिकॉज दैट्स अमेजिंग। इंस्टेंट आपका हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करवाता है, व्हिच इज जोक इट आउट, like JIO, and I always say it Gio khulke. So, right, joke it out. You have to have that laughter, as we all know, laughter is the best medicine. Or you must have seen कि old age में योगा में तो एक स्पेशली थेरेपी है, लाफ्टर थेरेपी करवाई जाती है, राइट? बिकॉज जितना आप लाफ्टर करेंगे उतने आपके हैप्पी हॉर्मोन्स जो है बॉडी से सिक्रीट होते हैं। मसाज इज वन ऑफ द वे, आप अपनी बॉडी की मसाज करवा सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस कि जब भी आप हेड की ऑयलिंग करते हैं, आप हेड मसाजेस करते हैं, आप अपनी बॉडी की मसाज करते हैं, यू फील दैट कामनेस, आपको ऐसा लगता है नींद आ रही है, यू फील दैट पॉजिटिव स्टेट, यू कामनेस स्टेट में होते हैं। तो मसाज इज वन ऑफ द वे। फोकस ऑन गुड मेमोरीज, राइट? आपकी लाइफ में अभी तक जितनी भी अच्छी चीजें हुई हैं, इफ यू हैव सम गुड मेमोरीज, उन पे फोकस करिए, राइट? अपना फैमिली टाइम निकालिए, उनके बारे में बात करिए। ऐसा तो नहीं है अब तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, हाँ, आपकी कितनी लाइफ निकल चुकी है। तो इस पैंडेमिक में फोकस करिए गुड पे, बिकॉज व्हेन यू फोकस ऑन द गुड, गुड बिकम्स बेटर, राइट? So it's all about focusing on your memories, on your good old memories, right? And next is of course the physical activity. आपने देखा होगा whenever you go to a psychiatrist or for the mental illness की आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं, वो आपको सेरोटोनिन की जितनी भी डोजेज एंटी डिप्रेसेंट्स लिख के देते हैं, उनमें सब में सेरोटोनिन होता है, हैप्पी हार्मोन एक सिंथेटिक फॉर्म में होता है। और वो हमेशा कहते हैं प्लीज वॉक करिए, प्लीज कोई एरोबिक एक्सरसाइज करिए, प्लीज कोई whatever kind of physical activity you like, whether it's Zumba, whether it is dance, whatever you feel like, you just move your body. आप फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करिए, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा एक वे है सेरोटोनिन या और जो हार्मोन्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डोपामीन व्हिच इज कॉल्ड एज अ रिवॉर्ड केमिकल। जब भी आप कोई अच्छी एक कुछ चीज अचीव कर लेते हैं ना, क्या जैसे आपने कुछ सोचा और आपको वो मिल गई, सो दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम योर बॉडी, दैट्स कॉल्ड डोपामीन, राइट? व्हेन यू कंप्लीट अ टास्क, व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग छोटी छोटी चीजों को, जब आप enjoy करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, or oxytocin, which is a love hormone, when you cuddle with your pet, when you hug someone, so that's a love hormone which is secreted from your body. Endorphin is a natural painkiller that is also released when you go out for any physical activity. तो ये सारे नेचुरल पेन किलर्स आपके निकल कर आते हैं। एंड सेरोटोनिन ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बात करी, रनिंग से, सन एक्सपोजर से, वॉकिंग इन द नेचर, मेडिटेटिंग, राइट? सो ये सारे आपकी बॉडी से हैप्पी हॉर्मोन्स को निकलवा सकते हैं। तो इन पे फोकस करिए और अपनी बॉडी के हैप्पी हॉर्मोन्स को जितना आप निकलवाएंगे उतनी आपकी बॉडी मेंटली भी जो है बहुत एक आपको अच्छी फीलिंग देगी, जिस जो आजकल सब कहते हैं कि हमें फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। सो यस, जस्ट टाइप इन HH, which is happy hormones, right? As soon as you type in something, your mind registers it, and even I also come to know that you are on the same page. So just show your activity. Just type in HH, which is happy hormones. Okay. Thank you so much, everyone. So yes, now try out and इनको अपनी बॉडी से निकलवाने की कोशिश करिए। जितना नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं उतना होइए, सनशाइन में बैठिए, जस्ट जोक करिए। व्हाट्सएप के मैसेजेस अकेले में बैठ के मत पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कुछ कॉमेडी सेशंस देखिए, राइट? टू हैव दैट पॉजिटिव फीलिंग, राइट? एंड फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट
we come to tortoise breathing technique. How many of you have heard about this? The deep breathing technique. All right, I want everyone to switch on their videos just for a minute. Just for a minute. Everyone, please switch on your videos. You know how much is the lifespan of a tortoise? It lives for around about 150 to 200 years तक. 150 से 200 साल तक एक tortoise जीता है, right? And उसका जो breathing pattern है, 1 मिनट के अंदर only 3 to 4 breaths लेता है, maximum 4 breaths. That's called the tortoise breathing, the slow breathing, the deep breathing, and hence the more lifespan. And a dog lives only about, on an average, about 14 to 17 years. And dog का heartbeat कभी आप देखेंगे so fast, it breathes like anything, right? So एक टेक्निक होती है which is called as the tortoise breathing. I'll tell you. अब सब अपनी वीडियोस को ऑन कर लीजिए. एंड यस, 1 मिनट के लिए हम इसको ट्राई करते हैं कि कैसे टॉर्टोइज ब्रीथ करता है. द नॉर्मल वे यू ब्रीथ इज कैसे ऑन होता है? राइट, इनहेल, exhale. That's a normal breathing. That's a normal breathing that we do, right? How a tortoise gives gaps in between, right? अगर वो गैप दे दे के, बीच में ब्रेक्स दे दे के वो ब्रीथ करता है. लाइक पहले अपने गले तक, थ्रोट तक एक जब इनहेल करता है, वहां होल्ड करेगा 2 सेकेंड्स तक. अपने थॉरेक्स तक, चेस्ट तक जब होल्ड करता है, वहां 2 सेकेंड्स होल्ड करता है. फिर अपने स्टमक तक, पूरे डायफ्राम को, पूरे स्टमक को जब फिल कर लेता है एयर को, तब 2 सेकेंड होल्ड करता है. एंड देन exhale it in a one time. Inhalation with breaks and exhalation at one time with nose, right? So just see me once, and I want everyone to switch on their videos and try it once. It's a very practical technique, and you can try it out just for 5 minutes, and you see how you don't even realize. आपको पता है, आप 1 minute में on an average a person takes about 16 to 17 breaths, right? And that too not a complete breath. So just look at me, first look at me, and then you can try. That's one attempt, right? So everyone please try. You can fill the air till throat, hold it for 2 seconds, then till chest, hold it for 2 seconds, then till your stomach, hold it for 2 seconds, and exhale it in one time, right? So just do it with me. Are you all on the same page? How many of you have tried? Just try it once more. That's a tortoise breathing. That's how you deep breathe and you do the conscious breathing. बहुत सारी breathing techniques आपने सुनी होंगी, प्राणायाम में सुना होगा, अनुलोम विलोम सुना होगा, but this is something a very unique, जिसमें आप break ले लेके अपनी breath को लेते हैं. That's how आपकी breathing technique, आपकी immunity अंदर से बढ़ती है. And this is a very important technique to make your lungs stronger. Yes, in this pandemic we are focusing on our lungs capacity. आपकी lungs के लिए बहुत अच्छा है. आप इस tortoise breathing को just 5 minutes से start करिए और 4 to 5 minutes से just start करिए and धीरे धीरे इसकी capacity बढ़ाइए. So just who all have tried or who will try or who all have liked this, just type in tortoise. Tortoise, that's it. A turtle or a tortoise, that's it. Just to show your activity, you're on the same page. Please type in tortoise or turtle, whatever you feel like, so that we can move ahead. Okay, so next time, thank you so much, everyone. Next time, please try this technique, tortoise breathing. You can Google it, how to do it. Just do it in the supervision of someone, because if you have high blood pressure or if you have serious heart issues, please do it in the supervision of someone. Don't try it. Don't hold your breath for a longer time. This is a disclaimer. जिसको कोई medical problem है, breathing की problem बहुत ज़्यादा है या कोई heart related issues हैं, तो please उसको वो try नहीं करिए. अपनी breath को इतना hold नहीं करना. But normal person के लिए अपनी lungs की capacity को बढ़ाने के लिए this is the amazing technique. जितनी slower आपकी breath होगी, उतना longer आपका lifespan होगा, उतनी आपकी lungs की capacity बढ़ेगी. All right. Next, we come to
यस ऑफ कोर्स हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी डेली रूटीन में, किसी भी फॉर्म में उसको करिए, किसी भी टाइम पे करिए। कोई कहता है सुबह बहुत अच्छा होता है, कोई कहता है शाम को बहुत अच्छा होता है, कोई कहता है सुबह कर लो, सुबह नहीं करा तो फिर पूरा दिन वेस्ट है। मैं कहूंगी नहीं, वेन एवर यू फील लाइक, ऑफ कोर्स नॉट आपके सोने से 3-4 आवर्स पहले तक कोई आपको एक्टिविटी नहीं करनी, सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब योर स्लीप, बट इवनिंग, मॉर्निंग, मिड इवनिंग, वेन एवर यू गेट टाइम, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप ये सोचते हैं कि अरे मेरा सुबह का तो टाइम वेस्ट हो गया, मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, चलो आज का दिन छोड़ो, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको जब मन करे, आपके अंदर से बॉडी कहती है नो, आई एम रेडी टू एक्सरसाइज, डू इट एट दैट टाइम, because something is better than nothing, and you just start with 10 minutes, but be consistent. I always say कि be consistent, don't go for perfection. परफेक्शन मत करो कि अरे आज मेरे को 30 मिनट्स करना, तो 30 मिनट्स नहीं हुआ, अरे उस पे आप सैड होके बैठ जाएंगे। नो, इवन इफ यू हैव डन इट फॉर 10 मिनट्स, say I have done it, right? Say positive statements to yourself, because कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जितना आप उसको डेली अपनी रूटीन में इंक्लूड करेंगे उतना इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन विल ऑटोमेटिकली कम। ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू this is very important for all the teenagers, for all the children, for all the teachers or the parents who are all with me, that about the goal setting, right? हमारी आज की जनरेशन को सब कुछ उनकी बुक्स में है एक्सेप्ट द न्यूट्रिशन थिंग। न्यूट्रिशन भी इनकॉर्पोरेट हुआ है, बट नॉट एट द स्टेज की जितना वो होना चाहिए, जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है वो इतना नहीं कराया जाता। न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं दी जाती। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, एवरीथिंग इज टॉट, बट जो उनकी बॉडी को बेनिफिट करेगा, जो उनको एक लाइफ के एक्सपीरियंसेस में डील करने में हैंडल करेगा, या उनकी गोल सेटिंग क्या है, वो अपने पर्पस को पहचानिए, व्हाट दे वांट टू डू। हम पूछते हैं ना एक बच्चे से, बेटा आप क्या करना चाहते हो, कोई भी रिलेटिव आता है ना, उनको पूछते हैं कि बच्चे आप क्या करना चाहते हो, आप बताओ, एंड दे से, कोई कहता है मैम हम ये बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, राइट, दे से, एंड हम वी ऑल लाफ एंड वी से कि अरे अब तो बड़ा होगा, फिर देखते हैं क्या करेगा। This is the time to make them aware of their goals, to guide them into goal setting things. ठीक है, उनका what, why and how, these are the three things that matter the most in your goal setting thing. What, why and how, आपको क्या करना है। If someone says कि मुझे, for example, let's suppose कोई कहता है मुझे singer बनना है, right? I have a very good voice. Why? Because I have a very good voice. I love singing. I want to, show my passion to the world. It's my passion. Okay. आपका why जब बहुत clear हो जाएगा, and then how आपका automatically चलेगा, right? So आपका what and why जो है वो बहुत clear होना चाहिए आपके mind में। आप एक checklist बना सकते हैं, आप अपने students को, अपने children को guide कर सकते हैं। और एक होते हैं, let me tell you, एक होता है आपका स्मार्ट गोल जब आप बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट गोल, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, SMART, which is specific. Your goal should be very specific, right? What do you want to do? Describe your goal. Like, I want to achieve whatever. Okay, I want to maybe achieve this much marks or this much in any subject. Okay, how will you track your progress? Measurable. Are you measuring it on a daily basis whenever your tests are going on? Are you monitoring your progress? कैसे आप उसको मॉनिटर करते हैं, मेजरेबल है या नहीं है। अचीवेबल, व्हाट स्टेप्स आई कैन टेक इट टू अचीव दिस गोल। अब उस गोल जब मुझे पता लग गया, मैंने मेजर भी कर लिया कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे इतने मार्क्स चाहिए, आप उसको अचीवेबल, कैसे मैं उसको अचीवेबल बनाऊंगी, मैं उसके लिए पढ़ूंगी, मैं उसके लिए कोचिंग लूंगी, राइट। एंड आर, इज इट रेलेवेंट जो आपने बनाया है, राइट। अगर एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है या कुछ अच्छा स्टूडेंट है, वो कुछ ऐसी चीज कर लेता है जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, ऐसा नहीं, आपको रेलेवेंसी होनी चाहिए, वो अचीवेबल, उसका रेलेवेंस होना चाहिए कुछ गोल का, राइट। So that should be relevant, and yes, T is time based. Your date should always be written. Like for example, कोई कहता है मुझे कार खरीदनी है, अच्छा कौन सी कार खरीदनी है, the name of the car should be describe your goal, specific, very specific, measurable. How will you track your progress, right? आपने उसके लिए आपके पास फंड्स हैं, आप उस फंड्स को कैसे अरेंज करेंगे, and अचीवेबल, व्हाट स्टेप्स यू कैन टेक टू अचीव दैट गोल। आप उस कार को खरीदने के लिए क्या क्या करेंगे, राइट। आपने सोच लिया कि मुझे BMW चाहिए, आपने मेजरेबल कर लिया, आपने उसके स्टेप्स लिख लिए, आप उसकी प्लानिंग करेंगे, फिर आप रेलेवेंस भी लिखेंगे, BMW ले भी सकते हैं या नहीं, आपको लग जाएंगे अभी, राइट। सो that should be relevant, and T is the time based. You have to write a very specific date, like in 2025 I want this car at my home, just write it down.
So that's called the SMART goal. And in all the aspects, you can see a circle of wheel of life in career, in financial, spiritual, physical, whatever your goal is there, you can rate yourself and you can make this SMART goal. That's how you make your goal. तो अपने children को, अपने students को सिखाइए अभी से ही कि उनका क्या goal है अपनी life में, ताकि वो अपने purpose को पहचाने, right? Next we come to the healthy habits for teenagers, right? एक हैबिट को बनाने में 21 डेज लगते हैं और उसी हैबिट को ब्रेक करने में भी 21 डेज लगते हैं. यू कैन मेक और ब्रेक अ हैबिट इन 21 डेज. तो आप एक चीज को जब शुरू करते हैं, ट्राई टू डू इट फॉर कंसिस्टेंटली 21 डेज, वो आपकी हैबिट, आपकी ब्रेन कंडीशनिंग हो जाती है. तो मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड. आपने शुरू तो कर लिया, बट हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग. मैं सबको, अपने क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ, अपनी हैबिट्स को चेंज कर लोगे ना, आप अपनी हैबिट्स पे, एक बार आपकी हैबिट बन गई, देन योर हैबिट्स विल रन द शो, राइट? तब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने सोचने के लिए कि मैं वेट लॉस कैसे करूं, मैं अपना ये वाला गोल कैसे अचीव करूं. अपनी हैबिट्स बना लो, फिर आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली आपका काम करेंगी, राइट? तो हैबिट फॉर्मिंग इज वन ऑफ द एंड वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट. मैं सबको आज बोलूंगी कि अपनी इस हैबिट को प्लीज अपनी डेली रूटीन में बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी करिए. टेक 5 minutes out to pay gratitude to the divine that you have everything. आज लोग उस ऐसी कंडीशंस में हैं जो जिनके पास खाना भी नहीं है, दे डोंट हैव शेल्टर, राइट? यू हैव एवरीथिंग, जस्ट पे ग्रैटिट्यूड. बोलिए कि थैंक यू. इट इज नॉट द जॉय दैट मेक्स अस ग्रेटफुल, इट इज द ग्रैटिट्यूड दैट मेक्स अस जॉयफुल. अगर आप थैंकफुल होते हैं ना किसी चीज के लिए, खुशी अपने आप आती है. जब आप बोलते हैं कि अरे मेरे पास तो इतना है, इतना तो शायद दूसरों के पास भी नहीं है. दैट्स व्हाट ग्रैटिट्यूड मीन्स, राइट? So you can see the affirmation, thank you God for the new day. When you wake up, you never know कि कल क्या होने वाला है. When you have woken up, just pay gratitude. Thank you for this beautiful day. I'm grateful for everything. God supports me. I'm thankful that I'm learning, I'm growing, I'm healing. So 5 मिनट निकालिए और ये ग्रैटिट्यूड हैबिट, जो एक डिवाइन को थैंकफुलनेस की हैबिट है, उस अपने क्या कहते हैं फैमिली मेंबर्स में, और ये इनकॉर्पोरेट करिए. एंड नेक्स्ट आई टॉक अबाउट द 7 wonders. How many of you are aware of the 7 wonders? Can you type in 1 or 2? Very quickly we'll do this. Can you type? You know about the 7 wonders? Any name of the 7 wonders that you know? What are the wonders according to you? Or how many of you have seen? Anyone? All the students are there with me. Just type in the name of any 7 wonders that you have seen, or any 7 wonders that you know. Yes, audience, please be active. Are you all there on the same page? Okay, great. Taj Mahal, yes, of course. What else? Anyone else? Burj Khalifa, okay. Yes, pyramids, yes, very nice. So these all are the wonders. Great Wall of China, all right. These are, thank you so much, everyone. These are the wonders for you. Some of you have seen and some of you have not. But what I'm going to share with you, it's going to rock your mind. And these are the 7 wonders of the world. Can you see on the screen? To see, to hear, to touch, to taste, to feel, to laugh, and to love. These are the real wonders of your life. If you have all these right now, please pay gratitude. Please fold your hands and thank you, God. Just pay gratitude that I have the sense, I have my all the senses working. These are the real wonders, right? To see, to hear. People, a lot of people who cannot even see, who cannot even hear, they cannot touch, they don't have the feeling sensation, right? They don't laugh often, right? They don't love often. If you can do all these things, right? So just pay gratitude. These are all the 7 wonders, the real wonders, right? So just try to value the things that you have. That's what I want to say. Next part, we'll go do what you love. In this situation, I would just guide or suggest every parent, every teacher, every student, जो भी उनको अच्छा लगता है एक चीज वो उठाइए, राइट? जो भी चीज उनको अच्छी लगती है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई कुकिंग में अच्छा है, बिकॉज व्हेन यू डू द थिंग तो आप उसको पैशन में चेंज करते हैं और आपका पैशन आगे जाके प्रोफेशन बन जाता है, देन योर लाइफ इज गोइंग टू बी अमेजिंग, राइट? सो start a new hobby, or finally pick up that book that you have always wanting to read.
बुक रीडिंग है, या एक हॉबी ऐसी उठाइए जो आपको अच्छी लगती है, जो आप चूज करेंगे, जिसमें आपका पेरेंट्स एंड द टीचर्स दे कैन आस्क देयर स्टूडेंट्स, दे कैन अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स नीड कि उनको क्या पसंद है, और उसमें उनको इमीडिएटली एनरोल करा दीजिए आज की सिचुएशन में। एंड यू नेवर नो, यू आर अनलीशिंग देयर हिडन टैलेंट्स, राइट? उनके हिडन पोटेंशियल्स को, उनके हिडन टैलेंट्स को अनलीश करने का, अनलॉक करने का ये अमेजिंग और बेस्ट टाइम है, बिकॉज यू आर गेटिंग द टाइम टू स्पेंड विद देम, जो आपको कभी मिलता ही नहीं था, राइट? तो ये टाइम है उनकी टैलेंट्स को पहचानने का। नेक्स्ट इज द मॉर्निंग रूटीन। टीनेजर्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए अपने मॉर्निंग रूटीन को, इफ यू यू नो विन द मॉर्निंग, कहते हैं इफ यू डू द मॉर्निंग थिंग, इफ यू विन द मॉर्निंग यू विन द डे। अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी हो जाती है तो आपका पूरा दिन अच्छा निकलेगा, राइट? तो आप अपनी मॉर्निंग को कैसे अच्छा कर सकते हैं? यू कैन डू योगा, यू कैन डू अ मेडिटेशन, जस्ट वेक अप विद द पॉजिटिव एफर्मेशंस दैट आई हैव टोल्ड यू। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर स्किप द ब्रेकफास्ट। टू ऑल द स्टूडेंट्स and all the children out there, all the teenagers, never skip a breakfast. Even if you're out of time, just pack it and have it. Don't skip it ever. And if you are thinking कि मेरा weight loss हो जाएगा, अगर आप health journey में सोच रहे हैं, so it works opposite. अगर आप जब तक आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सुबह एक मील से स्टार्ट नहीं करेंगे, आपका वेट उल्टा जाएगा, राइट? इट इज नेवर गोइंग टू, you're not going to lose. So never skip your breakfast. Have a healthy breakfast. And reading, of course, फॉर 10 to 15 मिनट्स कोई भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज रीड करिए सुबह सुबह, बजाय कि सोशल मीडिया। द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल scroll our phones, the first thing when we wake up in the morning, that's the habit. Just keep them at a bay. अगर आपको 60 मिनट्स, जब आप उठते हैं उसके बाद के जो 60 मिनट्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। उस समय अगर आप 20-20-20 की डिवीजन करके 20 मिनट्स मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ी योगा कर लीजिए, 20 मिनट्स आप अपना अच्छा ब्रेकफास्ट कर लीजिए, 20 मिनट्स कुछ रीड कर लीजिए, वो एक अच्छा 1 घंटा आपकी मॉर्निंग का अगर अच्छा निकल गया, देन योर डे इज गोइंग टू बी अमेजिंग, बिकॉज स्टार्ट इज ब्यूटीफुल, राइट? नेक्स्ट वी कम to healthy morning routine. As I told you, you can have water. Yes, you have to be hydrated. You can do yoga, you can do meditation, any asanas, and you can do reading. And next is how you can manage the online classes, which every teenager or the children are going through these days, because they are on the screen all the time, and a lot of queries have been coming to me कि हम उनका screen time कैसे reduce करवाएं। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बीच में ब्रेक मिलता है, जस्ट स्टैंड अप फ्रॉम द वेरी पोजीशन यू आर सिटिंग देयर, ठीक है? वहां से खड़े हो जाइए, मूव, वॉक अराउंड, उस जगह पे बैठे मत रहिए। वेदर इट इज 15-20 मिनट्स, whatever breaks you are getting, just get up, take water, stay hydrated, have water, have some healthy snack, right? And stretch your body, right? You have to stay hydrated. Water is very important. कई मुझे क्वेरीज आती हैं पेरेंट्स की, टीचर्स की, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा सुबह से बैठा हुआ दोपहर तक, और उसने पूरा जो सुबह ब्रेकफास्ट में जो वाटर लिया था, बस आधा ग्लास, 6 hours have gone and he has not taken, or she has not taken any water or anything to eat, which is very bad. So you have to be hydrated. Keep a water bottle at your side. जब भी बीच में ब्रेक मिले, और ब्रेक नहीं भी मिलता है, just pause your video, have a sip of water, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, स्ट्रेचिंग करते रहिए, उठिए, थोड़ा सा वॉक अराउंड करिए। एंड यस, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्नैक की फोटो लगाई है, एनर्जी ओट मील, वैसे ही आप घर पे कुछ हेल्दी स्नैक बच्चे को दे सकते हैं, ताकि उसका जो सुबह से दोपहर तक का जो 5 to 6 आवर्स वो ऑनलाइन बैठा है, उसका न्यूट्रिशन भी बीच बीच में एज अ ब्रेक, हेल्दी स्नैक या जो भी उसको पसंद है, क्रिएटिव वे में आप बना के उनको दे सकते हैं। इन दिस वे यू हैव टू टेक ब्रेक्स। टेकिंग ब्रेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उस पोजीशन से उठ के जस्ट वॉक अराउंड इन योर होम, डोंट सिट, राइट? So managing screen time, you have to read a nice book. आपको एक बुक, हाउ टू फिक्स अ गैजेट टाइम एंड अ नॉन गैजेट टाइम स्केड्यूल आपको एक बनाना पड़ेगा। आपके 5 hours निकल गए ऑनलाइन क्लासेस में फॉर द किड्स एंड फॉर द टीनेजर्स आई एम टॉकिंग, और रेस्ट ऑफ द डे जो आपका बचा है, उसमें भी कई पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि वो कोई गेम खेलता रहता है, या कोई इंटरनेट पे कुछ whatever, he or she is watching something on the YouTube, or always busy on the screen time. You have to fix, the whole family has to be involved in this. पूरा एफर्ट्स सबका लगता है, ऑल द पेरेंट्स नीड टू बी इन्वॉल्व इन दिस, कि आप एक गैजेट टाइम आप फिक्स कर दीजिए, उनको कुछ भी बोल दीजिए, दिस इज अ वाईफाई टाइम, दिस इज अ गैजेट टाइम, नाउ द गैजेट टाइम हैज बीन स्टॉप्ड, नाउ यू इन्वॉल्व विद देम इन द टॉक्स। कैसा रहा दिन, उनसे बॉन्डिंग करिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए उनको क्या अच्छा लगता है, आज क्या खाने का मन है, राइट? उनसे बात करिए। कुछ इंडोर गेम्स प्ले कर सकते हैं आप, you can play carom, you can play chess, or whatever games your kids
like. You can involve them into your daily course. आजकल तो आप उनको किसी भी डेली कोर्स में, अपने घर के किसी भी क्लीनिंग स्टफ में, यू कैन टेल देम टू मेक देयर बेड व्हेन दे वेक अप, और कोई क्लीनिंग, कोई डस्टिंग, एनी काइंड ऑफ कोर्स यू कैन इन्वॉल्व योर किड्स, राइट? एंड नॉन गैजेट टाइम में आप उनको एक रीडिंग चैलेंज दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग, एज आई हैव टोल्ड, इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप हर 10-15 डेज में एक नई बुक उनको दे सकते हैं. Like, you can, a book about a historical figure. Then when it's over, then you can give them a reading challenge about an animal, or a book that's funny, or a book of fantasy, a book on your best friend's favorite, a book about a boy, a book about summer, a book about seasons, a book about nutrition. So that's how you can incorporate these little funny and creative challenges. And of course, you can play indoor games with them. So this is the effort of the whole family, right? And that's how you can fix the gadget and the non-gadget time, because I can see the parents asking me कि उनके behavioral changes हो रहे हैं children के. That's because of the screen time. You have to really make an effort, right? All right. So you can also do yoga. ठीक है. This is the kids yoga. जो simple poses हैं, हम उनको incorporate उनकी life में. सूर्य नमस्कार सिखा सकते हैं आप उनको, and कुछ mountain pose है, chair pose है. These are really, उसको आप enroll करा दीजिए अगर जिसका उसमें interest है, right? So yes, in the end, now we have come to the session's end, and now this is the hashtag. You always put a lot of hashtags in your Facebook, on the social media, hashtag this, hashtag that. Now, what's your hashtag today, right? I am working on a new me. That's my hashtag. That's always been my hashtag, because जितना मैं अपनी self progressiveness पे, self पे work करती हूँ, self growth पे work करती हूँ, I've always believed that this should be your hashtag, or make your own hashtag, create your own hashtag. So I am working on a new me, right? So that's always I put certainly into my journals or into my diaries, that whatever I write. So I want in the end all of you to write your short one word hashtag. Today's hashtag. Yes, everyone. I want to see everyone hashtag. Hashtag is that this is the main my motto, or I'm working on it right now, or to highlight something. So how do you hashtag lifestyle, hashtag new normal? All right. Great. I want to see some students hashtags, some parents hashtags. The teachers have joined in. Please write in your hashtags. What's your hashtag? Okay. All right. So be positive and helpful. Yes, very good. Hashtag lifestyle, new thing, amazing, amazing. Yes, lifestyle is the key. If you have made a hashtag, Anshika, your lifestyle a hashtag, that's amazing thing, because lifestyle is the key to all your problems. It's going to unlock everything. Learning, very good. Learning, it has to be a lifelong thing. Vandana ji, thank you so much. Hashtag learning. Learning, we are learning from every little thing in our life, in our daily routine. Reading, yes, of course. रीडिंग इज समथिंग लाइक मैसेज, एक बुक्स, एक माइंड से दूसरे माइंड पे एक मैसेज ट्रांसफर होना, दैट्स कॉल्ड रीडिंग. किसी ने लिखी है, किसके कुछ थॉट्स हैं, राइट, वो आप तक ट्रांसफर हो रहे हैं. सो इट्स अमेजिंग लर्निंग, रीडिंग, लर्निंग, न्यू थिंग, न्यू नॉर्मल, लाइफस्टाइल, अमेजिंग. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड in the last, I would like you to tell something about me, that again, that I'm a lifestyle management consultant, and you can always get in touch with me. This is my number. Please note it down. If you have any query, you can always reach out on this number. This is my WhatsApp contact number, 729-081-7770. And if you want any lifestyle transformation packages, which have given amazing results to my clients, and they have lost weights, not only weights, but they have changed their lifestyle, they have changed their habits. So if you also want a package, you can contact me, or I can just you can note down my email ID also. I'll share it with you. So just in case you want, you can just make a note of this contact number, and
I will be definitely there for you, helping you in transforming your lives as I have transformed mine. Now, my motive is to transform everyone's life for a betterment, for their betterment. So I thank from my bottom of my heart. I thank you everyone for joining, for taking your precious time today. You all are conscious souls. You all are beautiful souls that you have connected. And yes, you are ready for the new learnings, for the new lifestyle. So I wish you all the best in your lives and stay healthy and stay blessed. Thank you so much, everyone, for joining me. And yes, if you have any queries or any questions, Mr. Shah sir, if we can take some queries. If you have any queries, just type in the chat box if you have any questions. So we have received some queries over the chat box. So Okay. participant has written that I feel acidity a lot of these days. What can I do? Okay. Acidity. Yes, it's a very, very, common issue that we all face because see the thing is that we have become so sedentary in this pandemic, right? We are not moving much. So again you have to know the root cause of acidity. आपको एसिडिटी क्यों हो रही है? क्या आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं? क्या आप बिल्कुल ही पूरा अपना लाइफ जो आपकी दिन का रूटीन है वो एक सेडेंट्री है, वो बिल्कुल बैठे बैठे हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, या आप लेट डिनर कर रहे हैं, राइट? या कुछ ऐसी ऑयली एंड शुगरी चीजें, आई मस्ट से फ्राइड एंड प्रोसेस चीजें अपनी डाइट से हटा दीजिए। और अर्ली डिनर, योर डिनर शुड बी, योर लास्ट मील ऑफ द डे शुड बी अराउंड 7:30 to 8। एंड अगर आप कोई मेडिकेशंस पे हैं, इफ यू आर ऑन एंटासिड्स, तो प्लीज पहले रूट कॉज फाइंड करिए कि एसिडिटी, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, स्ट्रेस इज द मेजर कॉज ऑफ एसिडिटी। बिकॉज आपका जो इफ योर स्टमक, इफ योर गट या हेल्दी नहीं होगा, आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है। सिमिलरली आई टोल्ड यू द ब्रेन गट कनेक्शन, अगर आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है, इफ यू आर इन स्ट्रेस, दैट इज कनेक्टेड टू योर गट, सो यू विल ऑटोमेटिकली फील एसिडिटी। तो जितने भी स्ट्रेस आप लाइफ में, थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने मूवमेंट रखिए बॉडी की, अपने आप को एक बिठाइए मत एक जगह पे। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, एज वी ऑल नो कि सिटिंग एक जगह पे नहीं करनी चाहिए। 1 आवर के बाद हमेशा 20 मिनट्स का ब्रेक देना चाहिए। तो आप अपनी मूवमेंट को बढ़ाइए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए और अपना खाना देखिए, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द अर्ली डिनर, 7:30 to 8। एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज, इफ देयर इज एनी अदर थिंग दैट यू थिंक कि मेरा प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा है, मेरी फ्राइड फूड ज्यादा है। योर बॉडी नोज एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, जस्ट आस्क योरसेल्फ, उसका रूट कॉज ढूंढिए एंड ये कुछ चीजें देखिए, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन। यस। Okay. So we have another question. Miss Shruti has a question. My kids are spending most of the time in front of the screen. I can see some behavioral changes are there, like getting cranky and irritated all the time, and how to deal with these issues. Yes. See, as I've already mentioned in my this while before, that I was mentioning कि students have their a lot of time spent in front of the screens, which is important, which is essential for them. You can't, avoid their online classes. वो तो जरूरी है ही। बट उसके अलावा जो टाइम बचता है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, विच इज अ नॉन गैजेट टाइम, which is very very important for each and every family member, the parents or the grandparents, for everyone to involve with your kid, right? Even if you have little time, just give your kid some time. You can play some indoor games. सबसे पहले आप अपने child से queries कीजिए कि उनको क्या पसंद है, right? If he or she is interested in cooking, learning chess or any other thing, singing, drawing, painting, उसमें उनको enroll करवाइए, वो सिखाइए जो चीज उनको पसंद है। हमेशा उनकी नीड्स को पहचानिए, उनको क्या चीज अच्छी लग रही है, किस चीज से इरिटेशन हो रही है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन, राइट? ऑनलाइन जब आप बैठते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन। तो वो जो नॉन गैजेट टाइम हमारे पास बचता है, द वेरी क्रूशियल फैमिली टाइम, उसमें हर मेंबर को एफर्ट करना पड़ेगा। यू कैन इन्वॉल्व देम इन योगा और मेडिटेशन और द डीप ब्रीदिंग और द टर्टल ब्रीदिंग, एज आई टोल्ड यू कि उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व करिए। और just sit 2 or 3 members and play any game or chit chat or any paper pen game, right? We used to play name place animal thing, अभी मुझे याद आ रहा है हम लोग खेलते थे। तो so yes, in this way you can
you know, involve your child in different things and उनको आप उनके जो behavioral changes हैं वो भी change हो जाएंगे. आप उनको थोड़ा सा किसी और चीज, जैसे कहते हैं ना स्क्रीन टाइम की एडिक्शन है, तो उनकी जो चीज उनको पसंद है ना वो इनकॉर्पोरेट करिए उनकी डेली रूटीन में. तो आई एम श्योर थोड़ा सा ब्रीदिंग हो गई, थोड़ा योगा हो गया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी. आई एम श्योर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ आई हैव नॉट मेंशन्ड कि अगर आप कुछ भी खाते हैं वो एब्जॉर्ब और एसिमिलेट तभी होगा जब आप फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे. तो अगर आपका किड्स कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे आजकल के टाइम में, उनको स्किपिंग करवाइए, आप इंडोर रनिंग करिए उनके साथ, कोई ऐसी गेम, कोई हाइड एंड सीक खेल लीजिए, बिकॉज until and unless they'll move, their nutrients, their food is not going to get absorbed. So very important for their overall health, physical activity से उनका बहुत अच्छा आपको behavioral changes में भी असर नजर आएगा. Yes, that's from my side. Yes, sir. So we have one more question. I have a sleep issue. What can we do to have a good sleep? This is a question from Arjun. Okay. Sleep. Sleep issues, it's with everyone because हम अपना सारे दिन का जो हमारा हैबिट्स है, वही मैं बार बार वही पे आके बात रुकती है कि आपका लाइफस्टाइल और हैबिट्स कैसी हैं. बिकॉज आजकल आप पूरा दिन टाइम, आपको लगता है अरे तो कहीं जाना नहीं है, हमें कहीं आना नहीं है, आप कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, और सो एक टाइम पे नहीं रहे. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फिक्स अ स्लीप टाइम एंड अ वेक टाइम. आई एम नॉट टेलिंग यू to wake up at 6 or wake up at 7 or wake up at 8 in the morning. Just fix a time, any time, be it 8 or 9, but fix a time for the wake up and sleep time. That should be daily same. One thing, one very important thing. अगर आप 9 बजे आपने सोचा है तो 9 बजे रोज उठिए, because that's how your rhythm of the body is going to get set. जैसे हमारी biological clock एक set है, ठीक है, सुबह 6 बजे sun rises, right? 6 से 8:30 के बीच में हम बोलते हैं कि सन पीक पे होता है, हमें विटामिन डी लेना चाहिए. एंड रात को सन सेटिंग का भी एक टाइम है. वैसे ही अपना भी एक रिदम बनाइए, अपने एक बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करिए. मैं ये नहीं कहती सुबह सुबह उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ. स्लीप साइकिल तभी मेंटेन होगी जब आपकी बॉडी की रिदम ठीक होगी. और स्लीप के लिए कैफीन, जितनी भी टी कॉफीज हैं, प्लीज उनको अवॉइड करिए अपने बेड टाइम के समय में. एंड यू कैन इंस्टेड हैव द कैमोमाइल टी. आप नोट डाउन कर सकते हैं, कैमोमाइल टी या लेवेंडर टी. ये टी ऐसी होती है जो कामिंग है, जो आपको नींद देती हैं. दीज आर 1 or 2 हर्बल टीज जो आपको नींद में, आपके इंसोम्निया में हेल्प करेंगी. तो ये तो आपकी रही कुछ हर्बल टीज, बट डेफिनेटली ये आपका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज है वही आपकी एक अच्छी स्लीप में भी रेगुलेशन देगा. जैसे मैंने बोला, उसको टाइमिंग्स उसको फिक्स कर दीजिए. और कैफीन का इंटेक आपको 5-6 बजे के बाद आइडियली नहीं करना चाहिए. 5 बजे के बाद, 4 से 5 आपका मिड मॉर्निंग जो मिड इवनिंग का जो टी है वो हो जानी चाहिए, सो दैट यू गेट अ गुड स्लीप बाय 10, राइट? सो एंड स्क्रीन टाइम, you have to shut down all the notifications, all the gadgets. अपना दूर रखिए. अपने सोने से 40 to 60 मिनट्स, 1 घंटा पहले, आइडली 90 मिनट्स बोलते हैं, बट आप आधे घंटे से ही शुरुआत करिए. ग्रेजुअली इंक्रीज इट, राइट? आधा पौना घंटा पहले, 30 to 40 मिनट्स पहले अपने सारे गैजेट्स को अलग से रख दीजिए. बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, वो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा जब तक लाइट होगी. लाइट नहीं होती, डार्कनेस होती है, दैट मीन्स स्लीप है. तभी वो मेलाटोनिन सिक्रीट होगा आपकी बॉडी से, विच इज द सर्कैडियन रिदम नेचर का. जितनी उसको लाइट, हम रात को 1-1, 2-2 बजे तक जो जागते हैं, जो स्क्रीन ऑन रखते हैं, उनको कभी भी नींद अच्छी नहीं आ सकती. सो अपने गैजेट्स को प्लीज दूर रखिए. 1 hour बिफोर, 40 मिनट्स बिफोर, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए. एंड नो कैफीन एंड फिक्स अ रूटीन ऑफ स्लीप एंड योर वेक टाइम. यस. So now, Nupur, we can wrap up because we have already addressed all the questions. Yes. All right. So So now, I am. thank you, everybody. Yes, thanks a lot everyone for joining, and I'm also giving my uh, email. I hope everyone has got. Sir, can you see my email in the chat box? Not yet. We haven't got the email. You can write it down one more time. Okay.
cannot see that screen. Okay. I think I'm not, I cannot see that screen. Thank you so much, everyone, for joining in. Below the I'll just give you my email now, email address. Um, and you can just see that also, down below. You can see the chat box option is yes, there, yes, just yes. below. Okay. All right, I am. Can everyone see Okay. now? Yes. Yeah, so this is my email address. If you want to reach out to me, you can email your queries. And as I mentioned about my contact number also, I'm giving you if you want to reach out to me for any queries, for any packages, for your lifestyle change, for healthy life. You can always, you know, uh, reach out to me on this WhatsApp number and on this email address. You can make a note down of it. And yes, thank you everyone for joining in. So now we can wrap up. Thank you everyone for joining this meeting and this webinar. Sorry, Thank you, I'll just, Shruti. yes, I'll just, I think I typed it something wrong. Yeah, this is my address. It's, this is not letting me type in, sir, correctly. You have to give me a Okay, couple take of your time. minutes. No, not sense. Sorry everyone for the typing mistake. And this is noopsgj7@gmail.com. It's NOOPSGJ7@gmail.com. The last one that you're seeing, it's correct one. NOOPSGJ7@gmail.com. And my number is 729-081-777. So you can reach out to me. And yes, I thank iVolunteer team also. I thank them from the bottom of my heart for conducting this amazing webinar, which is, making everyone aware about the healthy living in this pandemic. So yes, thank you, sir, and thank you to your team as well. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you everyone for joining. Bye bye. Take care. Thanks. Bye-bye.